name it. So Mm-hmm. on top of it, why this move? What is the Okay. motivation behind it? So that way you are also saying by COVID they have already captured half the world, right? I mean, probably 80% of the world. So now why what's the need of physical capture? Is that a correct Oh question? yes. Yeah, they captured 80% of the world, and I think they're going to lose 100%. They're going to lose China also with that, because I read there were a lot of protests in Uh-huh. China. Those have been removed, Mm-hmm. and those they are tracking down more such movements that are originating here and there all over China, when they want the right to speak, the right to talk, Mm-hmm. right to express. So So they yes, are curbing those, right? They don't allow. They, I mean, like kind of yeah, they're dictatorship curbing within. those. हाँ, तो Yes, आई थिंक ये तो yes, कहीं ना कहीं इस पे ही आ जाते हैं पहले. इट्स ऑल्सो द मीडिया काइंड ऑफ दैट चाइनीज मीडिया इज very controlled media, right? Whereas Indian yes, media is more of a biased. So Chinese media is biased towards government, forced biased rather. yes. So that's one reason I think. तो एक चीज और आई थिंक एक चीज और आई read somewhere, I mean, seen in the movie, I mean seen in some case study also, that what China is doing is they are also doing lot of investments in various infrastructure kind of thing, like giving debt to many countries कि आप ये बना लो वो बना लो, Yes, ऐसे वैसे है. And then when yes, they are not able to pay the debt, they are pretty much taking that on like a 99-year lease, pretty much like capturing that thing. yeah, like Sri Lanka, yeah, Yeah, Sri Lanka is one example, I think one of the port, yeah, and there are yeah. other places also. So they are they are having this debt like debt burden strategy kind of, Hmm. uh, which Yes, that with uh Nepal they did it with Pakistan. uh So yes, they are so very they are much actually hitting from all the sides. all over. Yes, Oh, yeah. So a COVID, it's a controversial, but still COVID is one way the whole world is captured in a in a biological way. Okay. Then by giving debt, they have captured a lot of infrastructure, semi infrastructure of the like part of the country बोल सकते हैं. और फिर और भी है कि they have invested in so many startups, जो हमारा एक पॉइंट भी है उस पे भी आते हैं कि अगर इतने सारे स्टार्टअप में चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया है, तो सीधा सा बात है कि देयर इज अ काइंड ऑफ ओनरशिप, परसेंटेज ओनरशिप दैट गोज टू China. And like we were also discussing that lot of I mean items are still imported from China, and like government directly probably cannot say no to them because of a lot of reasons, UN reasons maybe. तो so now pretty much the अभी तो इंडिया में लोग कंज्यूमर पे रिलाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कंज्यूमर सब कुछ करे, बट कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर तो अपना मास्क तो लगा नहीं पा रहा है. ठीक है, लेट्स हियर फ्रॉम अदर पीपल. कंज्यूमर ही Yes, करता है सब yes, कुछ, टैक्स भी I कंज्यूमर भरता है, जो नहीं नहीं, कंपनी आई एग्री. होती है उसको तो भी बट कंज्यूमर का टैक्स टैक्स भी उठाता है। सारे कंज्यूमर नहीं भरते ना, ये प्रॉब्लम है. यस हरी, मिस्टर हरी बताइए आप. या ये yes, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। या सो दैट्स व्हाई आई yes एम सेइंग वही मैं बोल 130 रहा करोड़ है, कितने लोग मानेंगे इस देशभक्ति को. यस मिस्टर हरी बताइए आप. था। यस मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर बॉयकॉट भी करना है तो हाँ. इन दैट केस शॉपकीपर्स शॉप ओनर्स जो है उनका तो लॉस होने ही वाला है जिन्होंने हम्म. ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है. सो हम्म. वो तो लॉस रहा ही. तो दूसरा चीज अगर आपको बॉयकॉट करना ही है तो फिर इंपोर्ट ही बंद कर दो, सबसे बेस्ट. तो वहां पे आई थिंक ज्यादा इम्पैक्ट गिरेगा अगर गवर्नमेंट लेवल पे या टॉप लेवल पे हम लोग ये करें कि इंपोर्ट ही रोक दे या तो इंपोर्ट ड्यूटी इतना बढ़ा दे कि हम्म. जो क्वालिटी है जो अदर प्रोडक्ट्स है उसके बराबर आ जाए उसका बराबर आ भी जाए प्राइसिंग. प्राइसिंग. तो ऑटोमेटिकली बॉयकॉट हो जाएगा, उनको वैसे ही नुकसान हो जाएगा काफी. तो हम्म. ये एक चीज हम लोग कर सकते हैं. वैसे भी अभी पीएम मोदी जी ने प्रोडक्ट वाइज पूरा लिस्ट डिटेल्स मंगाया है just to हाँ. curb the China imports. So I just हाँ. received one notification कि या there is Modi ji is going to review the list of products that are being imported.
from China now. Mm-hmm. Yes. Okay. तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है इन केस, मुझे I लगता don't know, मुझे डर like at a very core डर इस बात का है कि ये डिक्लेयर नहीं करना था, ये सब चीज ये चुप चुप कर लेना था। अभिषेक, you have some comment please. हम हाँ बोल बोलो। रहे थे कि जो जो हरि जी बोल रहे हैं, शायद गवर्नमेंट अपने तरफ से डायरेक्ट कभी भी अलाउ नहीं कर सकता है कि चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया। इनफैक्ट किसी भी एक कंट्री से उसको पावर नहीं है अलाउ करना कि इंपोर्ट बंद कर इंपोर्ट बंद सकते, कर दो। क्योंकि जो भी यूएन है वो सारे देश का भी तो है। फिर इंडिया का बॉयकॉट होने लगेगा, तो इनफैक्ट पब्लिक खरीदेगा नहीं, या अपना एक कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट ऑफिशियली अनाउंस कर दे। पब्लिक अपना देशभक्ति दिखाए, दुकानदार दिखाए, दुकानदार प्रोमिस करे कि हम लाएंगे ही नहीं, लेकिन एक गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकता है। नहीं, नहीं इसमें थोड़ा सबसे सा बड़ा नुकसान इसमें Yes, ma'am, कंज्यूमर का भी है। मतलब नहीं वही अगर नुकसान बहुत imports लोगों का बंद है, होते नॉट हैं, जस्ट कंज्यूमर। सबसे बड़ा कंज्यूमर देखिए, कोविड की वजह से ऑलरेडी जॉब्स नहीं, परचेजिंग पावर अगर है ही नहीं कंज्यूमर के पास, पैसा ही नहीं है कंज्यूमर के पास, एंड नॉट दैट इट्स द लोअर क्लास, इवन द मिडिल क्लास फॉर दैट मैटर एंड अपर मिडिल क्लास आल्सो, क्योंकि जॉब कट्स भी हैं और सैलरी कट्स भी हैं। तो अगर बिजनेस भी, आपके पास चीप, हाँ मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर बेसिकली मिडिल कैश क्लास, इज लो नाउ इन मोस्ट पीपल्स एग्जैक्टली, पॉकेट। तो परचेसिंग पावर ही नहीं है, बहुत ही कम। नहीं, ऊपर से इसमें अगर आपकी गुड्स जो होंगी वो अगर महंगी होंगी, अवेलेबल महंगी गुड्स होंगी, तो इकोनॉमी बिल्कुल ही नहीं चलेगी, चलेगी कैसे इकोनॉमी? और फिर जो चाइनीज गुड्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, कितने सारे बिजनेसमैन जो हैं वो चाइनीज की गुड्स को बेचकर ही अपनी रोजी रोटी करते हैं। तो इमीडिएट इम्पैक्ट हो जाएगा ये, और इसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, सप्लाई नहीं होगी गुड्स की। तो ये तो एक बहुत ही, मतलब ये तो बिना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके वी आर डिगिंग अ ग्रेव फॉर आवरसेल्व्स। दिस इज व्हाट आई बिलीव। कोविड का इम्पैक्ट और ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा कहीं ना कहीं ऑन ग्लोबल ट्रेड, राइट? एंड स्टैगफ्लेशन से तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाती है इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और गुड्स नहीं होंगी। करेक्ट करेक्ट, इसी पे आई थिंक आई वांटेड टू टॉक मोर, कि ये जो बॉयकॉट बोल तो दे रहा है हीरो जैसा सब लोग। यस मिस्टर हरी, बताइए। डिफर। हाँ बताइए। एग्जैक्ट। यस, आई डिफर विद सम पॉइंट्स। मुझे जैसा भी अभिषेक जनता और प्रीति मैम ने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या तो फिर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी ऐसा, सो दैट इज नॉट टोटली करेक्ट। इट इज एक्चुअली जस्ट व्हाट वी से दैट एक बिलीफ है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, यस। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर आना है तो आएगा ही, और ऑलरेडी कोविड में भी काफी लोगों के जॉब्स जा चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी है अभी। मीन्स अगर इसी तरह से चलेगा तो इसमें अगर चाइना अटैक कर रहा है एंड इफ दे आर ट्राइंग टू डिक्टेट बेस्ड ऑन देयर services that they are giving, so there is no point in having a democracy in India and having a country, right? Because अगर वो खुद if they decide the rules and regulations बाहर से कोई और देश करेगा तो it is not feasible for us to do that. अगर ऐसा है तो एक रिसेंट का एग्जांपल है जहाँ पे HDFC बैंक में चाइनीज फंडिंग बढ़ा दिया था। सो दे इंक्रीज द स्टेक फ्रॉम 0.8% to 1%, और वो इतना मेजर इम्पैक्ट था कि उसके बाद से पूरे जो फंड्स है चाइना से जो फंड्स फ्लो हो रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज लिया गया, रेगुलेशन कि देयर आर मच मोर थिंग्स दैट नीड टू बी चेक्ड बिफोर टेकिंग सच फंड्स। सो वो कैपिंग भी होना बहुत जरूरी है, वरना दैट इज अगेन देन द सेम थिंग कि दे विल ऑलवेज डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, एनीथिंग। और अगर सस्ती चीज है तो इंडिया में ही बना लेंगे, सस्ता अगर चाहिए ये, उसमें क्या है। इसमें मैं ये बोलूंगी कि
FII निकालना, प्लीज प्लीज आप बोलिए पहले। अच्छा FII को निकालना और करना इज वेरी इजी, लेकिन जब कुछ गुड्स या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फार्मास्यूटिकल जितनी हमारे देश में दवाइयाँ बनती हैं 80% रॉ मटेरियल चाइनीज से आता है। तो वो 80% आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आप प्लानिंग होनी है, प्लानिंग मतलब थिंकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वो सब होने का है। तो वो सब ओवरनाइट नहीं, इट इज अगर हम बॉयकॉट चाइना करना चाहते हैं, इट हैज टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5 साल का एक प्लान, एक 10 साल का प्लान, उस तरह से प्लान्ड फेज में होना चाहिए। ये ओवरनाइट आप उठ के नारे लगाने लग जाओ बॉयकॉट चाइना, लॉकडाउन जैसा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते। नहीं, इसमें एक और चीज मैं जस्ट एग्जांपल डालता हूँ कि पीपी किट्स भी हम इंपोर्ट ही करते थे चाइना से और बाकी कंट्रीज से। नाउ वी आर मेकिंग पीपी किट्स, जब मजबूरी आती है सो वी हैव टू डू सही इट। बात है। आई थिंक प्रीति मैम का कहना है कि ये कितना टाइम लगेगा रहता है, सो आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? 1 घंटा तो, 5 इयर्स तो 10 साल? 5 इयर्स तो आउट ऑफ द वे है, बॉल हाथ से निकल जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, बट स्टिल 5 दिन में भी नहीं होगा, तो देयर इज 5 दिन में भी नहीं समवेयर होने इन वाला द है। मिडिल। एग्जैक्टली, लेकिन स्टिल आई बिलीव 2 साल के अंदर हमको ये सब, मतलब Sure. अगर इस पे फार्मा। थोड़ा सा और बाकी लोग का भी ओपिनियन लेते हैं। अतुल सर आप बताइए प्लीज, हाँ, कितना साल लगेगा सब कुछ क्लीन करने में? तो उसमें फ्यूचर को अगर समझना है तो कभी कभी पास्ट का स्टडी अगर करेंगे ना तो बहुत आसानी से आंसर मिल जाता है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है जो चाइना जो कर रहा है, या कोविड जो हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ, ऐसे चीजें आती रही हिस्ट्री में। तो जैसे आज चाइना वर्ल्ड का, चाइना नहीं अभी आज तो अमेरिका है वर्ल्ड का दादा, सबसे बड़ा पैसे वाला, सुपर पावर, मतलब हर तरह से मिलिट्रीली भी सबसे सुपर कौन है? अमेरिका। सबसे सुपर कौन है इकोनॉमिकली? अमेरिका। तो आज कुछ समय पहले जापान काफी कॉम्पीट कर रहा था, अमेरिका को टक्कर दे रहा था। जापान की इकोनॉमी अमेरिका के एकदम टक्कर में आ गई थी, टोयोटा, होंडा, उस बड़ी बड़ी कंपनी। अभी एज ऑफ नाउ करंटली वर्ल्ड में 3 बड़े बड़े पावर्स हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूरोपियन यूनियन, एंड देन नंबर 3 चाइना। और चाइना एक्चुअली चाइना नंबर 2 हो गया है। तो नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, एंड देन फिर यूरोप, एंड फिर बाकी सब। इंडिया तो टॉप 5 टॉप 6 में है, लेकिन टॉप में नहीं है। लेकिन पास्ट में क्या हुआ था कि सिमिलर चीज, रोमन एम्पायर भी ऐसे ही था, पूरी दुनिया का पावर रोमन एम्पायर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर था। उसके बाद उसके पहले भी आया ग्रीक एम्पायर, ग्रीस जो है एथेंस का जो एम्पायर था काफी बड़ा था। हालांकि हिस्टोरिकली आप जाएंगे तो अभिषेक जनता कैन कंफर्म कि उससे भी बड़ा एम्पायर था भारत में, मगध एम्पायर था, काफी बड़ा बहुत बड़ा एम्पायर था। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर में बहुत बड़ा एम्पायर था, पूरे मलेशिया और पूरे एशिया वगैरह थे, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। तो उससे स्टडी करते हैं ना तो एम्पायर्स जो है ना, क्या होता है कि एम्पायर्स का राइज एंड फॉल होता है। किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो पढ़ेंगे, मैं उनका नाम बोल रहा, बहुत बड़े उनके 10 वॉल्यूम की किताब है हिस्ट्री पे, वन ऑफ द टॉप मोस्ट हिस्टोरियन। तो एम्पायर्स वाली हिस्ट्री से आइडिया लग जाए क्या होने वाला है चाइना के साथ या कोविड के साथ। तो चाइना कॉलोनियल कोई पावर जो कब्जा करता है दुनिया पे, अपना वर्चस्व जमाना चाहता है अपना, या फाइनेंशियल, मिलिटरली, हर तरह से पावर जमाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि नंबर 1 इकोनॉमी को कैप्चर करता है, उसके बाद साथ में मिलिट्री को भी भेजता है। चाइना ने भी वही किया। चाइना की इकोनॉमी अभी इतनी बड़ी हो गई लास्ट 40 साल 50 साल में, इतना तेजी ग्रोथ आज तक हिस्टोरिकली किसी कंट्री में नहीं हुआ था। तो चाइना फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमिक पावर चाइना ने बना लिया, आज अमेरिका के टक्कर का आ गया। अभी भी सेकंड नंबर पे है, मतलब कि साइज में डिफरेंस है। यूएसए कितना होगा, 20 ट्रिलियन होगा या कुछ होगा एग्जैक्ट नंबर, चाइना ऑलमोस्ट आधे पे आ गया है। एंड फिर बाकी कंट्री भी, यूरोपियन यूनियन भी उसी टक्कर में है, और ये तो इकोनॉमिक पावर की लड़ाई है मेन, साथ में मिलिट्री पावर की लड़ाई तो चल ही रही है। और इकोनॉमिक और मिलिट्री बहुत बार मिले जुले होते हैं कि जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है वो कैसे बनता है। आज अमेरिका इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर क्या है, अमेरिका दुनिया भर को हथियार बेचता है। अभी इस अमेरिका जो इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में भी
क्या चल रहा है। अमेरिका ने अपना तीनों जो सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। इंग्लैंड जब पावरफुल था, पूरे वर्ल्ड का राजा इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड भी अकेले एक छोटा सा आइलैंड है बट पूरे दुनिया पर शासन कर रहा था इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने अपने दुनिया भर में अपने उस समय इंग्लैंड नेवल पावर था, उनके पास शिप्स थे काफी अच्छा, और उस जमाने के लिए शिप वाज द न्यू टेक्नोलॉजी। उस जमाने में एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज होता है ना, वैसे वैसे इकोनॉमिक पावर चेंज होता है। पुराने जमाने में लोग घोड़े से लड़ते थे, पैदल लड़ते थे, बाद में शिप आ गया तो ये इंग्लैंड काफी पावरफुल बन गया। जर्मनी भी बना, फ्रांस बना, तो जर्मनी, फ्रांस, सारे यूरोपियन कंट्रीज ने पूरे दुनिया में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग अमेरिका। बाद में जब पिछले कुछ सालों में 40-50 साल में जब अमेरिका जब सुपर पावर बन के उभरा है, उसके पीछे भी अगेन इकोनॉमी वाज द मेन थिंग। वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी दुनिया में खत्म हो गया इकोनॉमी, तो अमेरिका में उस जमाने में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम आया, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे यूरोपियन कंट्रीज तो लड़ाई में बिजी थी और उनकी पूरे क्रीम ऑफ द सोसाइटी, मतलब सारे जो यंग जनरेशन पूरे वॉर में मर गए। उस मौके में यूएस भी, जब यूएस जब उसमें एंटर किया तो यूएस उसमें काफी फायदा हुआ था, तो यूएस ने लड़ाई को शांत किया और यूएस 19 हिरोशिमा नागासाकी में अपना बम छोड़ के अनाउंस किया कि भैया टाउन का नया शेरिफ, आई एम द न्यू शेरिफ इन टाउन, शहर का मुखिया मैं हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुखिया मैं हूँ। तो अमेरिका ने एक झटके में जापान को उसके जमीन एटम बम छोड़ के हिरोशिमा नागासाकी में जापान जो राइजिंग पावर था उसको जमीन पर ला दिया, और जर्मनी और बाकी सारे जो पावर्स थे उन सबको भी अमेरिका ने दिखा दिया कि अमेरिका के बिना लड़ाई जीती नहीं आ सकती है। जब अलाइड पावर काफी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, बट द मोमेंट अमेरिका पे जब उन्होंने यहाँ पर्ल हार्बर वाज द एक्चुअली मेन पॉइंट, नॉट द बॉम्बिंग। तो जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ, मतलब कि वो पैसिफिक में है, तब अमेरिका ने कहा कि अब तो हमको मौका मिल गया है, मतलब कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। वही पर्ल हार्बर मोमेंट टाइप, जैसे कि चाइना इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, मैं उससे कंपेयर करना चाहूंगा। तो पर्ल हार्बर मोमेंट हुआ तो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम, एटम बम छोड़ा के दुनिया को दे दिया कि भैया हमसे पंगा मत लो। अमेरिका आ गया तो अचानक वर्ल्ड वॉर लिटरली ओवर हो गया। पूरा हिटलर हो, चर्चिल हो, जितने भी सारे लोग थे, द मोमेंट अमेरिका एंटर्ड विद अ बिग बैंग, 2 एटम बम छोड़ दिए हिरोशिमा नागासाकी में, सब शांत। और साथ में उसके बाद केवल एक बम छोड़ने से नहीं होता है, उसके बाद तो बम पूरे दुनिया में हो गया कि बम आगे नहीं छूटना चाहिए, सब खत्म हो जाएंगे। बट अमेरिका के इकोनॉमिक जो राइज हुआ था उसी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही राइज हुआ था। पूरी दुनिया जब लौट के जब आए सब लोग वर्ल्ड वॉर के बाद सब अपने अपने कंट्री में, तो अमेरिका ने ग्रेट डील दिया दुनिया भर को, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दुनिया भर को अमेरिका ने पैसा दिया। जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, पूरे वर्ल्ड को अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिया। और फाइनेंशियली भी बाद में अमेरिका उस मामले में, पैसे के मामले में तो स्मार्ट है। तो इकोनॉमिक पावर अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में अपना जाल पर, जैसे कि इंग्लैंड एक जमाने में था राजा, वैसे अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया। उसी चीज को चाइना अभी रिसेंटली लास्ट 20-30 साल से ये कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। जो एग्जाम्पल बहुत लोगों ने दिया भी, कि चाहे वो अपने जो 14 नेबरिंग कंट्रीज हों, चाहे वो इंडिया में, चाहे इंडिया के नीचे श्रीलंका हो, चाहे उधर नेपाल हो, चाहे वो मलेशिया, इंडोनेशिया हो, या पूरे वर्ल्ड, इवन चाइना का आप देखेंगे तो अफ्रीका में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को चाइना और अमेरिका के बीच में टक्कर चल रहा है, कौन सबसे पहले किस कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेता है। साउथ अमेरिका में, ब्राजील में हर जगह चल रहा है। लेकिन एक ही गुड न्यूज ये है कि ये दादा जो चाइना जो राइज कर रहा है, तो उसमें क्या हो गया है कि शहर के बाकी लोग भी अभी इकट्ठा हो गए हैं कि नहीं। और कोरोना जो सबसे बड़ी चाइना की सबसे बड़ी गलती थी, जो बायोलॉजिकल छोड़ा या गलती से हुआ, आइदर वे, तो पूरे दुनिया को एक यूनाइट होने का एक कॉज मिल गया है। कि आइडियोलॉजिकली आपका डिफरेंसेस हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंस रहेगा और बहुत सारे लोग, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड यूनाइट हो गई है अगेंस्ट चाइना। तो ओनली चाइना का एक ही दोस्त बचा है, एंड दैट इज कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो कि एनीवे डिक्टेटर है किम जोंग वो। तो चाइना के पास अभी कोई दोस्त नहीं बचा पूरे वर्ल्ड में। यूरोप भी चाइना के अगेंस्ट है, मजबूरी में चाइना को झेल रहा है। अमेरिका भी मजबूरी में चाइना को झेल रहा है। बट पूरी दुनिया में इस बात को लेकर अनैनिमस एक एग्रीमेंट हो गया कि मिलिटरली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से हम लोग चाइना को सबक सिखाएंगे। तो जैसे बोला उन्होंने कि टाइम लगेगा, 5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। मेरा मानना है कि एक्सपोनेंशियल के एज में हम लोग जी रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मेरा फेवरेट टॉपिक है
कि चेंज जो है ना, अभी हर चीज लीनियर मॉडल पहले से भी था, लेकिन एक्सपोनेंशियल उस स्टेज पे पहुंच गए कि जो काम पहले 100 साल में लगता था वो 10 साल में होने लगा, बाद में अब वो 10 साल वाला चीज 10 महीने में होने लगा। तो अभी जो चाइना का जो राइज जो जिसको उसको 30 साल लगा, उसको फॉल होने में हो सकता है 3 साल भी नहीं लगे, हो सकता है 3 महीने में भी हो सकता है। लेकिन जो इकोनॉमिकली उसने जो इकोसिस्टम बनाया, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी टू अनटैंगल। आपके मकड़े के जाल में फंस चुके हैं हम लोग, तो छुड़ाने के लिए तेजी से कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े बड़े कुछ डिसीजंस, और अभी जो इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर पे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के तरीके दुनिया को ने चाइना को एक सबक दे गया कि अभी अमेरिका ने चाइना ने दादागिरी दिखाने से, तो अमेरिका ने अपना साउथ चाइना सी में अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। जर्मनी से लेके पूरे पूरे यूरोपियन यूनियन ने एक साथ में WHO में भी चाइना को बोला कि चाइना को हम हटा देते हैं, इंडिया अब आ गया है। यूनाइटेड नेशंस में भी बात चल रही है कि चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल से हटाया जाए, या एटलीस्ट बाकी सारे लोग मिलके। ऑब्वियसली वो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल मौका भी सही है, टाइमिंग भी सही है। और चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चाइना लड़ाई जीतना चाइना को आता नहीं, कभी चाइना ज्यादा जीरा नहीं, किसी पे कब्जा किया है। चाइना ने भारत से पंगा ले लिया है वॉर में। एटम बम तो छोड़ नहीं सकता, चाइना के पास ज्यादा एटम बम है, इंडिया के पास कोई छोड़ नहीं सकता। माउंटेन्स जो है ना, माउंटेनस वॉर में चाइना का एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर है। और इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है ना, चाइना को दन 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 बॉम्ब करेंगे तो चाइना कुछ महीनों में चाइना बाप बाप बोलने लगेगा, और चाइना पैर पे पड़ेगा। और उसी की तैयारी चल रही है। तो अभी आप लोग जस्ट वेट कीजिए, अगले 1 आध महीने में अभी जितनी जो भूमिका बांध रहे हैं ना मोदी जी और बाकी सारे लोग, उसी का पूरी दुनिया को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि हम लोग चाइना के कस के पिटाई करने वाले हैं। और पूरी दुनिया भी ताली बजाएगा और सपोर्ट भी करेगा। और कोई कुछ और बाकी लोग कोई कुछ बोलेंगे नहीं कि रुक जाओ। यूनाइटेड नेशंस में भी चाइना की जरूरत नहीं, यूनाइटेड नेशंस एनीवे यूजलेस होता है। बट यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये सारे लोग मिलके अब इंडिया के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली, हर तरीके से चाइना के फॉल ऑफ चाइना बिगन इन। तो अतुल जी ये बताइए, तो वो ऐसा कर क्यों रहा है चाइना? मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट दे आर डूइंग अ ब्लंडर, दे आर मेकिंग अ ब्लंडर, सो व्हाई आर दे डूइंग इट? नहीं, चाइना ब्लंडर नहीं कर रहा है। चाइना के नजर में देखो तो दैट वाज चाइना's गोल। चाइना जो है ना, चाइना हमेशा से चाइना का दिली तमन्ना थी। चाइना आज से हजारों साल पहले एक जमाने में जब भारत और चाइना पूरी दुनिया के 30%, 40-50% इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे, तो चाइना जो है ना एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चाइना हमेशा से रहा है। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि भारत ने बुद्ध देकर बुद्धा को भेजकर, बुद्धिस्ट टीचिंग को देखकर पूरे वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वे में से कैप्चर कर लिया। पूरे वर्ल्ड में आज योगा और बुद्धिज्म करता है। चाइना का हमेशा से रहा था एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। तो चाइना अपने पड़ोसियों के साथ भी दबंगई करता था, दूसरे देशों में जाके करता था। तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटी। हर इंसान का कैरेक्टर होता है, वैसे चाइना का भी कैरेक्टर है। चाइना जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर हमेशा से रहा है। तो अब चाइना को ये रियलाइज नहीं हुआ कि अभी शायद टाइमिंग गड़बड़ा गई। आपने कोविड एग्जैक्टली ऐसा कैसे वो मिस कर गया? This is not the time for a war, or this is not the time to poke their nose in so many other countries. नहीं, आपके मोहल्ले में कोई गुंडा जो होता है ना, हाँ तो बताता हूँ क्या मिस्टेक नहीं हुआ। आपके मोहल्ले का जो गुंडा है ना, आपके मोहल्ले का जो गुंडा है, सबसे बड़े जो दादा है, तो उसको रंगदार बोलते हैं बिहार में लोग। तो रंगदार को ये नहीं पता चलता नहीं कि भाई मैं रंगदारी खत्म हो जाएगा, मैं ज्यादा अपने पंख ज्यादा उड़ाऊंगा तो मैं वापस अपने औकात पे आ जाऊंगा। रंगदार लोग को नहीं पता चलता। जब तक उनको लगता है कि मैं इतना बड़ा रंगदार हूँ, चाइना को है कि मैं इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियली भी जो पहले बोला था किसने कि पूरे वर्ल्ड को उसने कर्जा दे के रखा हुआ है। तो कर्जा के चलते बहुत सारे कंट्रीज, चाइनीज का लोन पे बहुत सारे कंट्रीज दबे हुए हैं। तो चाइना ने एक्सपेंशनिस्ट पावर के रूप में काफी अपना पावर बनाया है। चाइना से गलती ये होगी कि उसने अपना गलत शॉट खेल दिया। उसको लगा कि वो बन गया है किंग ऑफ द वर्ल्ड, बट कि वो किंग बना नहीं था। अभी वो नंबर 2 था, और वो नंबर 2 से हो सकता है जल्दी नंबर 3, नंबर 4 पे चला जाएगा अगर जो उसने गलती की है। क्योंकि ये जो चाइना का भी जो करंट क्या नाम है उसका जो किंग, तो वो उसका पावर है कि वो वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। हाँ, लीपिंग जो है ना, तो जी पहले हु था। तो इनका जो ड्रीम है ना कि दे वांट टू हैव द ग्रेट चाइनीज एम्पायर, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर कौन है, वो चाइनीज एम्पायर
है। वो उनका एक वर्ल्ड डोमिनेंस का उनका एक गोल है कि चाइना पूरे वर्ल्ड को डिक्टेट करेगा। उनके दिमाग में हमेशा है कि जैसे अमेरिका ने डिक्टेट किया, जैसे पहले इंग्लैंड ने किया, वैसे अब हम वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे, दुनिया को हम बताएंगे कैसे चलना है, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, दुनिया को चाइना सिखाना चाहता है। ईगो बहुत बड़ा उसमें चीज है। अभिषेक, तो क्या ये वजह हो सकती है कि मतलब चाइना इज ऑन इट्स वे टू डाउनफॉल? मतलब आई मीन just you know so so it might वो हो जाएगा I guess. अतुल जी, can I take it? So just 1 second, Neeraj. 2020 is the beginning of fall of China. कि पहाड़ पे चढ़ के नहीं होता, गिरना था ढलमा के, तो गिरना स्टार्ट कर दिया है। तो 2020 is the beginning of fall of China as per me. Yes, नीरज बताइए। चाइना ने कोई गलती नहीं करी है। चाइना इतनी जल्दी गलती नहीं करेगा। जो भी हो रहा है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति है। मैंने कल भी बोला था, सुनजू का एग्जांपल आपको दिया था, जो कि चाइनीज हिस्टोरिकली उनके चाणक्य या मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट या फिलोसफिकली जिससे वो बहुत इंस्पायर्ड हैं। चाइना ने जो इंडिया पे अटैक किया है वो ये सोच के किया है कि इंडिया इज बीइंग प्रपोज्ड एज अ न्यू लीडर और समवन हु कैन कम्पीट चाइना, हु कैन टेक पोजीशन ऑफ चाइना। सारा गेम पोजीशनिंग का है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। तो चाइना की जो हिस्टोरिकल थ्योरीज है उनमें बोला जाता है कि पहले आप लीडर को ही पकड़ के उड़ा दो, तो बाकी जो लोग हैं छोटे मोटे वो उस धमक से ही शांत हो जाएंगे। तो चाइना ने वही पॉलिसी को यूज किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये इंडिया इसको कैसे लेता है। तो चाइना ने कोई गलती नहीं की। तो आज ही एक न्यूज में ये था कि there was a cyber attack in Australia and China is to be blamed. साथ में ये भी था कि even they have their submarines pushing towards Japan. I mean they were discovered. So it's not only India, it's the other nations also कि जहाँ पर चाइना मतलब पोक कर रही है, एक साथ ही कोविड के जैसा। ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना का जो इशू, हांगकांग भी है, मतलब there are many countries. So it is not only India. हांगकांग इज अ सेपरेट सब्जेक्ट टू डिस्कस। वो उनका जो एग्रीमेंट है यूके के साथ उसकी वजह से है, वो इस चीज का पार्ट नहीं है। नहीं, but it is happening at the same time also. I'm not talking about the riots that happened earlier, not about those riots, but आज की डेट में it is poking in Hong Kong, Japan, India, and of course नेपाल के साथ तो उनका अब ally हो रहा है। तो फिर let me take one by one. Let me take countries. ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका कोल माइंस को लेके और काफी कुछ जो वहाँ पे उनका ऑलरेडी ट्रेड को लेके जो चीजें चल रही थी उसकी वजह से है। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही एग्रेसिवली स्टांस लिया है चाइना के अगेंस्ट। तो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू पोजीशन कि ऐसे आप हमारे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। जापान के साथ बहुत ही पुराना राइवलरी है और चाइना को पता है कि उनको अपने शिप्स फॉरवर्ड पोस्ट पे लगाने पड़ेंगे अगर कहीं पे इंडिया के साथ पंगा लेना है, क्योंकि जापान इंडिया का बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त है। तो वहां से अगर इंडिया के साथ कुछ होगा तो जापान की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ रहेगा। तो वो अपनी शिप्स को सिर्फ उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिसको बोलते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट पे भेज। और लगता है मुझे कुछ और लगता है अभी। बोलिए। हाँ, मुझे इसमें लगता है कि इसमें इसके पीछे जो है ना आरएसएस और बीजेपी है, इनको एक मौका चाहिए था। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, बहुत सारे जो एरिया जो है उसके कब्जे में है, अक्साई चीन और ये सब जो है, तो वो सब एक्चुअली बीजेपी और आरएसएस का पॉलिसी है कि जो अपना जैसे पीओके लेने की बात करते हैं, इधर चाइना ने जो कब्जा करके रखा है अक्साई चीन और ये सब जितने भी है, वो भी बीजेपी के एक्चुअली एजेंडा में है, आरएसएस के एजेंडा में है कि जो भी अपने जो जैसे मानसरोवर हुआ या ये सब जहां जहां हमारा ग्राउंड चला गया है वो सब वापस लेना है। तो ये सब इनिशिएट मोदी और बीजेपी ने किया है। पहले वो लोग चुप शांत रहते थे, अब रिप्लाई देने लगे और चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। और एक्चुअली ऑलरेडी मोदी और इनका जो टीम है लास्ट 5 साल से प्रिपेयर कर रहा था वार के लिए, और ये एक्चुअली उनका ही एजेंडा है, हिडन एजेंडा है। इधर से पीओके भी लेना है, इधर से चाइना का भी जो एरिया, इंडिया का जो एरिया चाइना में चला गया वो भी लेना है। तो आप कह रहे हैं कि 2013 में एग्रेशन हुआ था। हेलो
2013 में चाइना की ओर से इसी तरह का एग्रेशन हुआ था, तो उस टाइम भी क्या आरएसएस नहीं कराया था? नहीं, लेकिन ये बीजेपी का लॉन्ग टर्म एजेंडा है, बीजेपी आरएसएस का, कि जो हेलो, इंडिया का जो ग्राउंड चला अभिषेक गया wants to है। say something. यस यस, एक्चुअली हम आरएसएस का नाम सुनते हैं तो मेरे अंदर से बोलने का वो बेचैनी आ जाता है। बताओ। हर चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आरएसएस उतना देशभक्त और अच्छा संस्था हिंदुस्तान में की पूरा एक कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी सपोर्टर है या नहीं है, एक क्लियर करना चाहिए। और जहां तक रहा चाइना का बात, चाइना इंडिया से कभी भी युद्ध डायरेक्टली नहीं जीत सकता है, कभी भी नहीं। जैसे अभी जहाँ पे हुआ था, उसका सबसे बड़ा इंडिया के पास मेरिट क्या है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, और जो चाइना है बहुत ज्यादा लो पे है, उसका जो भी एरिया है नीचे है। और अभी वहां पे मोदी गवर्नमेंट अपना एयर बेस ये सब बनवा चुका है। अगर आज चाहे ना वो भारत सरकार, तो 2 दिन भी नहीं लगेगा जितना ऑक्साइड चीन है या जो भी है, इंडिया अपना फिर से कब्जा कर लेगा। हम लोग का देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस जैसे पार्टी इस देश पे शासन किया कि कब्जा करते गया, वो देते गया सब। 2013 में कांग्रेस के विदेश मंत्री एंटोनी की क्या नाम है, उनका आप स्टेटमेंट सुनिएगा, वो संसद में क्या बयान दे रहे हैं 7 दिन हंगामा के बाद, कि हम चाइना से टक्कर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है। भाई देश का विदेश मंत्री हो, तुम पगला गए हो क्या कि ऐसा बयान जब तुम संसद में दोगे तो तुम्हारा पड़ोसी देश तुम्हारे से क्या डरेगा? तो आई थिंक इतना बेटर गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं 56 इंच वाला है रियल में है, और आरएसएस जैसा संस्था कोई नहीं है, क्योंकि हम आरएसएस को बहुत ही करीब से जानते हैं। ओके, देखिए थोड़ा ये मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि ये जो हम्म। वॉर जीतती है अगर इंडिया, लेट्स से वॉर या व्हाटएवर, तो किसके अगेंस्ट जीतती है? लाइक पूरा कंट्री कैप्चर हो जाएगा चाइना एक झटके में, या फिर जस्ट एक सर बॉर्डर समय पे एक थोड़ा सा हाय हेलो होगा, बस इतना ही तक होगा? हाँ, यस नीरज प्लीज। एग्जैक्टली समय बहुत बदल चुका है, कोई भी वार नहीं जीत सकता है। इवन छोटे से छोटे, मैं कहता हूं कि आप श्रीलंका या भूटान से भी वार जीत के दिखा दीजिए। अभी सिर्फ जमाना टेक्टिकल वारफेयर का है। आपकी छोटी मोटी भिड़ंत होंगी, आपकी वर्ल्ड में पोजिशनिंग होगी, दैट्स इट। और उसके अलावा फुल फ्लेजेड वार ना तो किसी में लड़ने की हिम्मत है, और जीतना तो बहुत दूर की बात है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत वर्ल्ड चेंज हो फिजिबल भी चुका नहीं है, है आई नई गेस, नई टेक्नोलॉजी। वॉर हाँ करना हाँ, फिजिबल भी नई नहीं नई है, मतलब टेक्नोलॉजी, बेवकूफी हो जाएगा आई गेस। हाँ प्लीज नीरज, हाँ कंटिन्यू। बेवकूफी, बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली भी, अगर हम मिलिट्री की लैंग्वेज में बात करें, किसी भी कंट्री को आप जीत नहीं सकते हैं आज के जमाने में। वो जमाने जा चुके हैं जब देश के देश हार जाया करते थे। और अभी वॉर लड़ने के नए नए तरीके हैं। आपका साइबर वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ठीक है, टैक्टिकल वेपन्स के साथ छोटी छोटी पोजिशनिंग होती है। तो ये सब तरीके हैं। और अतुल सर जो बात इकोनॉमिकल वॉरफेयर की जो कर रहे थे उस समय, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। करंट यूएस का जो डेट है, दैट स्टैंड्स अराउंड $22 ट्रिलियन, ठीक है। और उस $22 ट्रिलियन का जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट करता है, यूएस फेडरल रिजर्व के ट्रेजरी बॉन्ड्स निकलते हैं, ठीक है, जो यूएस बेचता है एज अ डेट। तो उसका सबसे बड़ा खरीदार जो है वो चाइना खुद है। 1.1 ट्रिलियन का जो यूएस का डेट है वो चाइना ने खरीदा हुआ है। सबसे नंबर 1 पे शायद जापान है जिसके पास 1.2 ट्रिलियन है, और सेकंड नंबर पे चाइना है। और सबसे बड़ी मजे वाली बात देखिए, उन बॉन्ड्स को चाइना कभी बेच नहीं सकता है क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है उनको, लेकिन फिर भी हर साल चाइना उसमें पैसा डालता है, यूएस के डेट को खरीदता है, यूएस को पैसा देता है, और उसी पैसे से फिर यूएस चाइना से माल खरीदता है। तो ये सारा ग्लोबलाइज्ड है आज के टाइम पे, सारी इकोनॉमीज एंटेंगल्ड है आपस में। इतनी इजीली ये बोल के कि यहाँ से माल लेना बंद कर दो, वहां से कर दो, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट मैं एक और बोलना चाहूंगा, हरी जी ने कहा कि हम कर सकते हैं, अभी तो हमने पीपी किट भी तो बना लिया। वी नीड टू टेक प्रोडक्ट्स इन 2 सेंस। कुछ प्रोडक्ट होते हैं पीपी किट टाइप, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे हाई रिसर्च की जरूरत होती है।
फार्मा प्रोडक्ट्स जो हैं ड्रग डिस्कवरी में सालों साल लग जाते हैं। आप कहें कि चाइना से हम कल से 80% जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको बंद करके यहाँ पे बना लेंगे, नहीं हो सकता। वो एक प्रोसेस है ड्रग डिस्कवरी का। फॉर्मेशन ऑफ अ मेडिसिन बहुत लंबा टाइम लेती है, वो सॉल्ट्स को बनाना, वो सारी उस क्वालिटी पे लेके आना चीजों को। पीपीई किट हाँ बना सकते हैं आप, एक हफ्ते में वो यहाँ पे पूरा प्लांट लगा के शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर चीज नहीं हो सकती है। हाँ, वैसे कोरोना की दवा इंडिया ने सबसे पहले अभी बना ली, इंडियन कंपनी, आपने देखा होगा न्यूज़, आपने भी शेयर किया शायद। नहीं, वो दवाई तो पहले ही था, ये बेंगलोर केमिकल्स। एग्जैक्टली, वो दवा पहले था, वो इबोला पे यूज हुआ है वो दवा। इबोला के केस में वो दवा यूज। मिस्टर रवि हैज सम कमेंट। हाँ रवि जी बताइए, आपका क्या राय है इसमें? पूरा चाइना खत्म हो जाएगा या थोड़ा सा हल्ला होगा और ब्रांडिंग हो जाएगा इंडिया का? नहीं, अभी जितना भी डिस्कशन हुआ मैंने सुना, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना अलग पर्सपेक्टिव इन सारी चीजों के ऊपर में, ये पॉइंट है जितने भी डिस्कस हुए, दैट इज द पॉइंट, वो मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके टॉप ऑफ द पॉइंट एक ये भी है कि जब हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू नेशंस इटसेल्फ, और जहां पे स्ट्रेटजी इमोशंस पे तो नहीं बनता है कि राइट नाउ विच इज गोइंग इन द मार्केट विच इज मोर ऑफ अ इमोशंस काइंड ऑफ थिंग। हम ये सोचते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एट चाइना, सी लेट्स से यूएस एंड चाइना which is two right now the most powerful country in the world. Manufacturing shift करना will not be a solution for India. अगर हमें एशिया में compete करके चाइना को ऊपर आना है तो manufacturing is not a solution at all. अभी just learn from US. US का 72%, almost 70-80% manufacturing चाइना में होता है. Still they are the powerful country in terms of economy. तो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी सेटअप कर लेंगे, सो विल दैट हेल्प अस टू ग्रो? दैट इज द बिग क्वेश्चन व्हिच एवरी इंडियन और एवरीबॉडी इन इंडिया नीड टू बी आस्क्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसके लिए दो पॉइंट है व्हिच आई थिंक इन माय ओपिनियन, वन, गवर्नमेंट हैज टू कम इनटू इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कि आप किसी को बाइकर्स के लिए भी कह रहे हैं तो एट द सेम टाइम यू हैव टू डेवलप द structure, infrastructure, so that the private people can come into the picture and can put their money into the development. Otherwise, India already is a price conscious market since long time. So when everything's emotions created, but जब purchasing आता है, it's always a price factor which comes into picture in terms of deciding. एक recent example इन्हीं चीजों में 12th जून को हुआ है। अभी दिल्ली का वो रेलवे का प्रोजेक्ट का बिड ओपन हुआ था अप्रैल में। चाइनीज कंपनी इज द L1 एंड द डिफरेंस प्राइस इज ऑलमोस्ट ओनली 41-42 करोड़ रुपीस। 1126 चाइनीज कंपनी का था और LNT का 1170 और 71 समथिंग है। दैट इज द डील इज स्टिल नॉट फाइनलाइज्ड, लेकिन L1 is that company, and moreover अगर chances are that they will win the bid. नहीं, यहीं पे थोड़ा सा हम लोग अपडेटेड नहीं है। दिस वाज प्री जो अभी चल रहा है बॉर्डर पे, उसके पहले का था। उसके बाद से चाइना के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने स्टार्ट हो गए हैं और that contract is still not cancelled. कल का न्यूज़ है that contract is still in discussion. 12th जून को कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है and the as of now the age is towards that Chinese company to be get contract. नहीं, मेरा ये कहना है पॉइंट कि बहुत सारे चाइना के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको अनवाइंड करना इतना आसान और क्विक नहीं होता है। हाँ, तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो धीरे धीरे चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने स्टार्ट हो गए, केवल इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। और तो दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि सी एट प्रेजेंट वी आर फॉर्मिंग अ रिएक्शंस डिसीजंस और रिएक्शंस मेंटालिटी, वो which is not going to help us, rather than we need to be proactive in terms of developing our country. One more point on that. Actually, all decisions are, most people they spend their money not on logic, then made on their emotions. जो decisions होते हैं ना, ultimately जो भी marketing के लोग जानते हैं
कि आप बहुत अच्छा लॉजिक दे दो, एक्सेल शीट बना दो और फाइनेंशियल मॉडल बना दो, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर जो चेंज होता है ना, वो इमोशन से चेंज होता है. इमोशंस इज मोर पावरफुल देन लॉजिक. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. तो इमोशन बहुत पावरफुल है, उसको हम लोग डिस्काउंट नहीं करना. ये सही बात है. आई थिंक रवि विल अंडरस्टैंड, सेल्स के आदमी है. हाँ. इमोशन से ही खरीदते हैं लोग. बट यहाँ पे एक दो छोटा सा प्रोडक्ट लेने देने का बात नहीं हो रहा है. यहाँ पे एज अ नेशन बात हो रहा है सब कुछ, राइट? तो यस रवि बताइए. दैट इज एज अ नेशन इट विल. और एक मेरा पॉइंट और भी है विथ रिस्पेक्ट टू दी सिचुएशंस गोइंग ऑन द टेरिटरी पार्ट. टिल द टाइम जयशंकर इज देयर इन मिनिस्ट्री, no war is going to happen between India and China. That something happens and then there is chances, but till the time he is there, nothing is going to happen between India and China. 100% assured. तो मुझे मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, पर ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? He is probably saying कि कोई एक पॉलिटिशियन है, जब तक वो है जयशंकर इज तब तक कुछ नहीं होगा. फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ. अच्छा, मिस्टर जयशंकर. ठीक है. Mr. Jay, I am talking about Mr. Jayशंकर, foreign minister. Yes. And who also speaks Chinese. So he is the person right now who can control China in any way, in any format. But till the time he is there in the minister, things will be all right. The moment he moves out, then there are chances that some might clash happen. And why do you think he will move out? No, I am telling sir कि like see, government is a 5 years only. After 5 years elections will be there. अभी तो गवर्नमेंट का 1 साल ही हुआ, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है. अभी तो हम लोग जो भी सल्टाना है चाइना के साथ, तो अगले कुछ महीनों में सलट जाएगा, राइट? Right. So that is one my point. Till the time Jayशंकर is there as a foreign minister in that category, no war is going to happen between India and China, because he is the guy who can manage Chinese very aptly. एक चीज और पूछना है मुझे. और अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वैसे ही कांग्रेस के साथ कोई लड़ने आएगा ही नहीं. कि कांग्रेस के साथ में ऑलरेडी अभी जो पार्टी है चाइना की, they have a MOU between Congress and that party itself, Communist Party, which is running right now in China. हम लोग रियलिटी से थोड़ा भटक रहे हैं. अभी ये गवर्नमेंट अगले 4 सालों के लिए. नहीं, एक चीज अभी पप्पू नहीं आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, कभी भी. एक रियलिस्टिक क्वेश्चन है कि 5 साल बाद जब ये लेट्स से इंडिया आत्मनिर्भर हो गया हर तरह से, चाइना का जो भी होना था हो गया, तो पूरा वर्ल्ड कैसा दिखेगा? व्हाट इज योर टेक? लाइक व्हाट इज द वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड बी लाइक? कि सारे जो एनआरआई हैं चाइना में, उनका क्या होगा? जो चाइनीज इंडिया में है उनका क्या होगा? जो चाइनीज पूरे दुनिया में बहुत सारे हैं इधर उधर, उनका क्या होगा? जो फेसबुक में चाइनीज काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? गूगल में जो चाइनीज काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? आई थिंक आई एक्चुअली आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड कि ये होगा कैसे एग्जैक्टली. लाइक आई डोंट नो, आई मीन एनीवन वांट्स टू ऐड? I'll tell you what I feel. I mean, that's just what my gut says. Sure. The war is not with Chinese. The war is with the government. Okay. And even the Chinese, they do not really appreciate the government the way prosperous, so they don't mind it. You know, पैसा बोलता है, तो Chinese grew prosperous, जो पैसा आया, so they started liking the government. But with the COVID situation, what the government did with Chinese, वो Chinese लोग को भी पसंद नहीं आया. So even Chinese, to a very large extent, are not in favor of their government. तो मतलब अगर चाइना का जो अगर डाउनफॉल होता है, तो वो सिर्फ चाइनीज ही कर सकते हैं. तो अगर गवर्नमेंट का सिर्फ, यू आर सेइंग ओनली गवर्नमेंट का डाउनफॉल, बेसिकली चेंजिंग द गवर्नमेंट ऑफ चाइना. दैट्स इट. That's the win. That's all. Exactly. Okay. Yes. Because see, it's a human involved. Eventually, the Chinese are human beings. So the enemy is not a human. The enemy is the governance. The way it is governed. So one sect of people who just think that they are always right. तो I think वहाँ पर अगर Chinese अपनी गवर्नमेंट ही चेंज करते हैं, which is I don't know possible है कि नहीं, with the amount of security cameras that are around, जो कि coalitions बनने नहीं देते हैं चाइना में, but except for Chinese, no one can change China. तो अगर वही, और जो बाहर है चाइनीज, if you interact with them, they are not like, you know, जैसे अभी अगर यूएस में अगर एक इंडियन बैठा है, देसी है वो, आप उससे बात करोगे तो वो शायद हिंदुस्तानी देसी से ज्यादा देसी होगा. तो वो जो अमाउंट ऑफ
पेट्रियोटिज्म है that increases. बट अगर आप चाइनीज से भी बात करो बाहर, तो वो उतना पेट्रियोटिक नहीं होता है या वो उतना दिखाता नहीं है. तो आई थिंक वो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है सिर्फ चाइनीज से. That's my understanding जितना मैं मिली हूँ. ठीक है, But I may let's be hear wrong other here people. also. What is the new world like according? Atul sir, you wanted to add something, please? हाँ, Then I want Ravi to add can add. something. हाँ, what is the new world like, Atul प्रीति sir? बताइए. हाँ, तो प्रीति ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें चाइनीज लोगों से दुश्मनी नहीं है, आखिर वो भी इंसान है, हम भी इंसान, वो भी इंसान. तो भारत के लोग हो चाहे चाइना के लोग हो, सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन में, तो हम 1.5 बिलियन या जितने भी चाइनीज पॉपुलेशन है उनको हम विलेन नहीं बना सकते. वो सारे लोग इंसान है, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है. जो प्रीति ने कहा ना कि चाइना के गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, और चाइना का गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है नहीं, तो डिक्टेटरशिप है. तो चाइना के आपस में भी जो आंतरिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, चाइना में अभी ताइवान कैसे, ताइवान के लोग भी तो चाइनीज ही थे, बट वो अलग हो गए, जिनको डेमोक्रेसी पसंद थी उन लोगों ने अलग ताइवान को अलग बना लिया. तो चाइना को सबसे ज्यादा खतरा वही होने वाला है. चाइना के अंदर में मेजर इंटरनल रिवोल्ट होने वाला है, क्योंकि चाइना के लोगों को जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, इकोनॉमिक लिफ्ट हो रहा, तो सबकी मिडिल क्लास अमीर हो गया था चाइना का. अब अचानक जब चाइना की इकोनॉमिक स्थिति खराब होनी स्टार्ट हुई कोविड के बाद, पूरी दुनिया उनको बॉयकॉट करेगी, कोविड-19 के चलते बहुत लोगों की जान चली गई, तो उसका जो गुस्सा है ना चाइना में, बहुत सारे जो इंडिया में चाइना कराते रहता था आज तक या पाकिस्तान कराता था, कि पता चल रहा है कि वहाँ पे कश्मीर में वो चल रहा बैटल, वहाँ पे तेलंगाना में चल रहा, कहीं पे मध्य प्रदेश में वहाँ पे क्या नक्सलवादी वो सब चलता था, वो चाइना में अब इंटरनल रिबेलियन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है. तो मोस्ट लाइकली चाइना का, और प्लस उनका पावर स्ट्रगल हर जगह होता है, वो होता है कि अभी जो करंट पावर है वो अभी बचा के रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कोविड और इसके थ्रू या यूएस इंडिया की लड़ाई के थ्रू थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन. बट बहुत चांसेस है कि इंटरनली चाइना में पहले भी हुआ है, उनकी सत्ता चली जाएगी, जो करंट पावर है सत्ता चली जाएगी, और चाइना में ही हो सकता है, इसका अपसाइड होता है चाइना में हो सकता है डेमोक्रेसी आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, बट सत्ता चेंज होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जब लोगों की जॉब जाने लगती है और चाइना के ऊपर दुनिया में हिट कर लेता है. और मैं बहुत सारे चाइनीज के साथ इंटरेक्ट करता हूँ कैलिफोर्निया में, तो ज्यादातर जो चाइनीज यहाँ पे है बाहर में, चाइना से बाहर, उनको चाइना के करंट गवर्नमेंट से कोई प्रेम नहीं है. दे हेट देम बट व्हाट दे वांट टू डू इज कि वो चाहते हैं कि चाइना में फ्रीडम आ जाए, फिर से डेमोक्रेसी आ जाए. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं चाइना का, उनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. गूगल हो, इवन जिस पे काम करे युआन का फाउंडर भी चाइनीज है, एरिक वान चाइनीज है. बहुत बड़े बड़े कंपनी में जो चाइनीज जो है ना, चाइनीज एनआरआई केवल एनआरसी जो है ना, वो लोग मिलकर चाइना में सत्ता पलट के लिए फाइनेंशियली अदरवाइज दे विल डू समथिंग. हाँ PRC, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रेसिडेंट. हाँ, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लोग बाहर में है पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास पैसा है, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वो लोग मिलकर चाइना का सत्ता पलट करने में उनको इंटरेस्ट हो. उनको लगा कि नहीं, चाइना को भी चलो आजाद करा जाए डिक्टेटर से, और उसमें ताइवान भी साथ में आ जाएगा. ताइवान के पास चूंकि पड़ोस में है, उनके पास बहुत पावर है. हांगकांग भी हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि और भी जो बाकी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज में जो चाइनीज जो वो चाइना का पॉपुलेशन काफी उनके नेबरिंग कंट्रीज में है, इंडोनेशिया में या कोई भी मलेशिया में, जो भी पास के कंट्रीज में है, तो वहां भी चाइनीज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है. तो वो सारे जो चाइना के जेल से बाहर निकल चुके हैं, उनको पता है कि फ्री एयर, खुली हवा कैसी होती है. तो वो लोग अपने परिवार से काफी सब लोग जुड़े हुए हैं. आज के जमाने में वो लोग क्या कहते हैं, चाइना का जो ऐप है व्हाट्सएप का जो इक्विवेलेंट, उसके थ्रू सारे लोग टच में है. वीचैट के, हाँ, तो चाइनीज लोग वीचैट के तो सारे लोग जुड़े हुए हैं. चाइना के जो नॉन रेजिडेंट चाइनीज और पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है, वो लोग मिलकर, और वहाँ जो लोकल चाइनीज के लोग हैं, वो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरनल रिबेलियन में हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार पलट जाए. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच विल बी द आउटकम ऑफ दिस COVID-19 एंड आल्सो द चाइना's अटैक ऑन इंडिया. श्योर. ओके, तो इसमें मिस्टर रवि कैन ऐड. तो अगर लड़ाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो ये जो ट्रेड वॉर होगा, ये होगा, वो होगा, इसमें तो आई गेस आम पब्लिक ज्यादा पिसेगी. शायद गवर्नमेंट पिसेगी, बट मे बी सेकंड जब तक लेवल आम पे पब्लिक पिसेगी नहीं, वो एक्शन नहीं लेगी ना अच्छा, गवर्नमेंट के लिए. तो आम पब्लिक को मतलब जो मैंने लिखा, बॉयकॉट चाइना करके सिविल वॉर कराओ पहले, No. और सिविल वॉर होगा तो सब कुछ हो चाइना जाएगा. हो, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इट इज अ इजी टास्क. it has to be done in a planned phase, product wise, और जो नॉन एसेंशियल्स हैं उनको हटा के, या मतलब it will be at a very smaller scale. वो एक मतलब that is like
अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, ओपन ट्रेड, और मतलब उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, इतनी सारी ट्रीटीज जो साइन हुई हैं, सो देयर इज अ लॉट इन इट। तो वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, आप इमीडिएटली सब ट्रीटीज कैंसिल करके बैठ जाओ अपने घर में ताला लगा के, वो होता नहीं है। एक और क्विक पॉइंट बोलना चाहेंगे कि कोविड की दवा चाइना को चाहिए, इंडिया चाइना को भी दवा देगा। चाइना के लोग भूखे मरे, वो खाना भी चाइना को हम लोग देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लड़ाई चाइना के लोगों के साथ नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है या उस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ओके, यस मिस्टर रवि प्लीज, आपका क्या ये चाइनीज के अगेंस्ट है या चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई, बताइए। See, government belongs to people only, so I'll not say like Chinese people have the government, Okay. but they people only voted Jinping and Jinping through which No, he became no. undefined times president. So no, it was not. चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी ना है। नहीं डेमोक्रेसी नहीं है सर, वहाँ पे जो भी है डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन उनका जो चीज है वो हटने वाला भी नहीं है। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, इसमें चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज नॉट द पीपल्स गवर्नमेंट, इट इज लार्जली बाय गिने चुने लोगों का होते हैं, 80, 90, 100 आदमी का। एंड लार्जली आई हैव हर्ड दैट इट इज हार्डली 20 or 30 people who decides what to be done. And how dictatorship started in right China now, was now Jinping yes, is elected as undefined. एक मिनट रवि, हाँ प्रीति मैम प्लीज, तो 20 लोग भी कैसे डिसाइड होते हैं? आई वांट टू नो एक्चुअली। यस प्रीति मैम प्लीज। This I don't know how 20 people are decided, but why China chose dictatorship was there's a long history behind. हमने सबने सुना होगा कि वहाँ पे भूखमरी, मतलब there were millions people died because of hunger. There was no food, and Chinese were the vegetarians. मतलब अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियंस थे चाइना में थे। They would not even touch non-veg. पर वो भूखमरी इतनी ज्यादा हो गई थी चाइना में that people did not have a choice, so they started killing each other and eating each other. Cannibalization हो गया। तो चाइना की सरकार ने अलाउ कर दिया कि आप एक दूसरे को नहीं खाओ, जो जानवर मिल रहे हैं उनको काट के खाओ, वाइल्ड में जाओ जानवर पकड़ के लाओ। एंड हालत इतनी खराब थी कि वहां पे बच्चे मर रहे थे, जानवर मर रहे थे भूख से, कुछ भी नहीं था। So that was the time when China opted for dictatorship कि हम ऐसे नहीं रह सकते, we need a dictator, and then dictatorship came into picture. तो अब वो कैसे 20 लोग के, अगर किसी और को पता है तो मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। Yeah, Mr. Ravi, please. Yeah. Okay. So my point is, see, when you are talking about India and China, for one thing we need to consider, it's a global scenario which need to be in considerations. One, अब चाइना भी अपने से मतलब एकाएक आज यहाँ पे खड़ा नहीं है। He also has a walk through, मतलब उसने भी एक जर्नी ट्रैवल किया है। There was a time when 10 years China was nowhere in the world in terms of news and sharing anything. They themselves were developing for almost a decade altogether inside China, and that is how they set up and they become the manufacturing hub of the world. अभी चाइना का ट्रैक्शन एक रीजन ये भी है यूएस का अगेंस्ट ट्रम्प का इलेक्शंस के बाद में व्हाट इज द रिस्पांस गोइंग टू बी अगेंस्ट चाइना, दैट विल बी वन मेजर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ अभी इसका कितना रिपरकशंस हुआ। Now I was talking about on the territorial part which is happening right now with India and China. Even ये COVID नहीं होता, then also that situation was about to happen. If you know politics between India and China and the territorial part, that was about to happen. It is not happening due to COVID or it is not happening due to any other reasons. That territorial part was about to happen. It's only because India has a plan to occupy POK. And China has a great investment in APEC corridor, which is going through Gilgit and Baltistan. Gilgit-Baltistan falls into POK. The moment India will have it, again there will be a new government will come in a POK, and then maybe there are chances to revoke all the permissions which has given to the China to build that APEC. So there the government would be India, with whom they had to negotiate everything or deal with the Indian government. So keep that engaged. They are creating problems on the borders right now to
have a frictions in terms of debating Indian government in that part. One. Second point, right now there is a forum which is getting built against China in the world. Small like Japan, India, Australia, even France, few European countries coming together to like keep a mileage against the China in terms of shifting manufacturing things and all, economically taking things. It's because of the COVID. And the moreover, China has to put his power in South China Sea, and Australia is the only route through which they can route their pandubis and everything. So ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ चाइना का सारा शिपमेंट साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि उनको अगर आना है तो वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वो रूट से ही इधर पे अमेरिका के साइड में भी आ सकते हैं, फिर साउथ चाइना जापान के ऊपर में प्लेस ले सकते हैं. सो दैट इज द मेन ट्रैक्शन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना जो अभी एक चल रहा है. अगेन वन मोर पॉइंट विच इज गोइंग राइट नाउ एज अ वर्ल्ड लेवल की अभी एक पूरा फॉरम बन रहा है जो चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, एक्सेप्ट यूएसए. उसमें जापान इंडिया लीडिंग में है. जापान का स्टार्टिंग से चाइना के अगेंस्ट में पॉलिसी रहा है. यू मीन यूएस नहीं है चाइना के अगेंस्ट? चाइना यूएस दैट इज वन थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन सर सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस जिनपिंग गवर्नमेंट. तो वो तो है ही है एक्सक्लूसिव, दैट वी कैन नॉट डिनाई. सारे लोग गैंग अप कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस चाइना जो अभी चल रहा है, उसके अलावा भी एक कोविड के कारण एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है जहाँ पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर. ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज 20 कंट्री ग्रुप टुगेदर हो रहे हैं जो चाइना के अगेंस्ट में पॉलिसी लाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द कोविड इफेक्ट. लेकिन दो चीजें चाइना की तरफ में भी, चाइना एक लंबे अरसे से अपने डेवलपमेंट को मेंटेन किया है. एक चाइना, हम ये चीज डिनाई नहीं कर सकते एज इंडिया कि चाइना इज परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ. वी आर आल्सो पार्ट ऑफ यूटीओ and China is also part of WTO. So we have to follow also the WTO rules and regulations which involves economically to participate all the world country into the world phenomenal economical sectors. So WTO काफी rules regulations पास करता है जो हर एक country उसको oblige करता है. So we are also part of it. तो वो एक रहेगा. दूसरा, China is a part of permanent member of UNO. So हमें बहुत सारे decisions लेने में we have to get the approval from all these 5 people. US, China, France, England and other one countries, the 5 people are there, no? So और वहाँ पे चाइना के पास में एक veto power already है. If something which we are passing, so they can apply for the veto power even. That's another important point. I wanted to bring that up since you brought it up. कि चाइना का जो veto power था वो चाइना को नेहरू का गिफ्ट था और वो veto power था. and हाँ, that is another point of discussion sir. हाँ नहीं and documented नेहरू जी ने हाँ that is there right. ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं? अभी की कंडीशन हुआ. हाँ, तो अभी के कंडीशन बोलो. अभी क्या चल रहा है कि अभी बात चल रही है कि यूएन का भी रिफॉर्म की बात चल रही है कि ये 5 लोग सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है पुराने पावर्स थे. इंग्लैंड, फ्रांस, ये अमेरिका, ये लोग पावर थे, पुराने पावर है. अमेरिका, चाइना एंड रशिया. हाँ, तो अब नहीं, अब वर्ल्ड चेंज हो गया. तो बात ये चल रही है कि फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएन को भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज यूएन का रेलेवेंस नहीं रहेगा. तो उस नए पावर में हो सकता है कि चाइना तो रहेगा ही, बट साथ में हो सकता है कि और कंट्रीज भी आएंगी, इंडिया भी आएगा, हो सकता है ब्राजील. अभी जस्ट रिसेंटली वोटिंग 17th को कंप्लीट हुआ है, वोट आउट हुआ है. हम लोग अभी भी नॉन परमानेंट मेंबर के लिए ही असाइन हुए हैं. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेंज नहीं आप बात सुनिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेंज हो गया. मैं कह रहा हूँ कि चेंज की डिस्कशन चल रही है. अभी इंडिया ने अगले 3 साल के लिए इंडिया बन गया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर. मैं कह रहा हूँ कि यूएन के फॉर्म को चेंज करने की बात चल रही है कि यूएन जो है इररेलेवेंट होते जा रहा है वर्ल्ड में. तो बात हो रही है कि यूएन को थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा सा जो करंट पावर्स है, नए पावर्स है, उनको भी दिया जाए. पुराने जमाने में इंग्लैंड पावरफुल था इसलिए यूएन में. आज इंग्लैंड का कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी यूएन इंग्लैंड है, उसमें फ्रांस भी है. तो वो जो ओल्ड पावर्स थे ना, पुराने जो दादा लोग बैठे हुए थे, उनको हटाने की बात चल रही है और उसको एक्सपैंड करने की बात चल रही है कि थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेटिव यूएन को होने की जरूरत है. उसकी बात कर रहा हूँ मैं. वो अभी अगले दिन नहीं होने वाला है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ओके,
मैं एक ऐड करता हूँ, फिर नीरज कैन ऐड। ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को हटाना है कैसे भी, बट आई थिंक ये जो लोकल बॉयकॉट चलेगा या होगा, इससे तो कॉमन पीपल को ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। आई गेस गवर्नमेंट हटेगी एंड में, या नहीं भी हटेगी, बट बीच वाले जरूर पिस जाएंगे। यस नीरज प्लीज। सर थोड़ा सा मैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर बनने के लिए आपको 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और आपको कोई ना कोई जो एग्जिस्टिंग उनका जो मेंबर है, नॉट ओनली मेंबर, जो एक अच्छे लेवल पे है, उसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उसके बिना आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर जिनपिंग, इनके फादर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के काफी पॉपुलर और पावरफुल लीडर होते थे, बट विद टाइम उनकी कुछ छवि खराब हुई विद इन द पार्टी, और जाई जिनपिंग जो करंट प्रेसिडेंट है, इनको बहुत बुरे दिन देखने पड़े। ये ऊंचे खानदान से हैं, पिताजी बहुत ऊंचे लीडर थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन इनको ऐसे दिन देखने पड़े कि इनको गांव में जाके खेती करनी पड़ी अपने टीनेज के दिनों में, और गांव के में ही जाके पढ़ाई करनी पड़ी, और वो सारा स्ट्रगल करना पड़ा, जहाँ पे लोगों ने इनका बहुत मजाक भी उड़ाया कि ये तो उस ऊंचे खानदान से, और ये यहाँ पे देखो आ गया है। लेकिन समहाउ ही स्ट्रगल्ड, और दोबारा उनकी एंट्री हुई इसमें कम्युनिस्ट पार्टी में, एंड ही रोज थ्रू द पोजीशन। तो जो पोजीशन के थ्रू राइजिंग का जो प्रोसेस है, आपका बहुत ही बेसिक लेवल पे, आपकी गली मोहल्ले के लेवल पे वहां से लीडरशिप शुरू हो जाती है, और फिर वो मोहल्ले से शहर में बदलाव में जाती है, शहर से स्टेट, स्टेट से नेशनल लेवल। तो हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो पोलिट ब्यूरो होता है, और जो सारी जो ये ऊपर ग्रोथ होती है, ये जस्ट बेस्ड ऑन रेफरेंसेस, जो वो अतुल सर वाला कॉन्सेप्ट है, कर्मा पॉइंट के बेसिस पे चलती जाती है। किसी का कोई इलेक्शन का कोई वोट नहीं होता है खास। तो आपके जितनी पहचान है, जितने आपके लोगों से कनेक्ट हैं, ऊपर वाले लोगों की जितनी आपने जो भी कुचल्लेदारी करी है, उसके बेसिस पे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, और आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पे पोलिट ब्यूरो का सदस्य बन जाएंगे, जो कि पूरे के पूरे फिर आगे की एक आपकी सरकार को चलाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वे कि जो हमारा एक जमाने में मराठवाड़ा में जो हमारा करंट उदयपुर वाला जो एरिया है, उस पे जो किंगडम ने राज किया है सिंस 7th सेंचुरी, 1300-1400 सालों तक राज किया है, उनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता था। वहां पे जो राजा रहता था वो दैट वाज जस्ट ओनली अ फेस, बाकी जो राज्य चलाते थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, जिनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग से था कि किस हिसाब से राजा क्या पॉलिसीज बना सकता है और किस तरह से रूल किया जा सकता है। दैट्स व्हाई ओनली वो किंगडम सर्वाइव किया है इतने लंबे समय तक, क्योंकि राज करने वाला कोई एक आदमी नहीं था, राज करने वाली एक कमेटी थी। रही बात चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, ये पूरा का पूरा डेराइव होता है लेनिन थ्योरी, जो मार्क्सिस्ट और लेनिन थ्योरी है रशिया की, वहां से। और इसमें कहीं ना कहीं इनहेरेंट कैरेक्टर होता है एक्सपेंशन का। अगर आपको अपनी जनता के खून के उबाल को सहला के रखना है, तो आपको एक्सपेंशन मोड में हमेशा रहना पड़ेगा, बी इट इकोनॉमिकली, बी इट इन द फॉर्म ऑफ लैंड एक्सपेंशन। तो वो पॉलिसी बहुत स्ट्रांगली फॉलो हुई है शुरू से। पहले लोगों को गरीबी से उभारा गया। बहुत सारे लोग, अगर आप चाइना में इंटरनली जाके बात करेंगे तो बहुत खुश भी हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें उस गरीबी से उभारा है। दूसरा, अभी एक्सपेंशन लैंड की और जो उस तरह की एक्सपेंशन है, स्पेशल एक्सपेंशन जिसको बोलेंगे, तो वो भी इनहेरेंट पॉलिसी है कि हमें अपने आप को बढ़ाते रहना है। अगर हम अपने बाउंड्रीज को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो एटलीस्ट हम कुछ कंट्रीज को कन्वर्ट करके कम्युनिज्म में ला सकें। तो ये इस तरह से राज करने की थ्योरी है कम्युनिस्ट पार्टी की। और अभी नेपाल में भी जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। भारत की भी थोड़ी सी मूर्खता रही है पिछली गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने भी, जब ये नेपाल में सारा चल रहा था इंटरनल वॉर अगेंस्ट किंगडम और जो भी सब हो रहा था और डेमोक्रेसी की मांग हो रही थी, तो हमारी पुरानी सरकारों ने वहां के कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया, जो कि अब भारत को वापस परेशान कर रहे हैं। That's it from my side. Yeah. Ravi wants to add, or anyone else want to add? Please raise your hand. Yes, Ravi, please. Okay, I will add on this point regarding the market scenario which India have in terms of Chinese goods and products.
तो मैं अपने सेक्टर का अगर बात करूं, बिल्डिंग ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर का, हार्डवेयर का, मेरे सेक्टर में ऑलमोस्ट 98 to 99% प्रोडक्ट चाइना से ही आते हैं, एंड दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट लाइक स्मॉल प्रोडक्ट, दोज आर वेरी बिग साइजेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक बिल्डिंग के ऑटोमेशन में ऑलमोस्ट आप समझिए तो 10 CR 12 CR के प्रोजेक्ट्स रहते हैं सिर्फ एक सेगमेंट का, और वैसे ही ऑलमोस्ट 6 से 7 सेगमेंट्स वर्क करती है, तो ऑलमोस्ट 1 अरब का प्रोजेक्ट रहता है जिसके प्रोडक्ट सिर्फ मटेरियल कॉस्ट रहते हैं। हाँ, 100 करोड़ के मटेरियल कॉस्ट रहते हैं। तो दैट इज व्हाट की व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग द थिंग्स, तो हमारे पास अभी करंटली जो चीजें रिक्वायर्ड है इंडिया के लिए, आई विल सजेस्ट इज दी R&D। अगर गवर्नमेंट R&D के तरफ में ध्यान देती है, वी कैन डेवलप आवरसेल्फ। हमारी सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि R&D पे ध्यान दिया जाए। बाकी प्रॉब्लम्स इतनी है, गरीबी इतनी है, रिसोर्सेज नहीं है। Can I step in? Yeah, please. My question is to Ravi. Yes, sir. Ravi, एक चीज, is anybody stopping at this moment that you cannot bring in the goods from China? Nobody, right? So I believe it is just a sentiment, today. That is what I talk about. It's just an emotions which is right emotion, now. Yes. Emotion. और emotion से business और economy चलता नहीं है. That is one exact point I have said, the same point. You see, बिल्कुल सही। ये जो ये शुरू में एक और चीज मैं बोलता हूँ नहीं, अतुल सर जो बोल रहे थे ना कि इमोशन से चीजें बिकती है, तो इमोशन से चीजें रिजेक्ट भी हो जाती है, तो दोनों साइड है। इमोशन से कोका कोला पी सकते हैं आप, इमोशन से आप बड़े थिएटर में मूवी देख सकते हो, बट रेगुलर चीजें people will look at सही बात है, हर दिन का चीज नहीं होगा। इलेक्शन जो आप जीतते हैं ना, इमोशन से जीतते हैं, तो इलेक्शन मोदी जी को भी जीतना है और सबको जीतना होता है। तो आज पुलवामा के चलते ही आज मोदी जी का जो वोट जो था ना, सीट जो था, मतलब जो पाकिस्तान के साथ कुछ किया छोटा मोटा, तो आज मेजॉरिटी उनकी अगली, बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, तो इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, नहीं हो रही है, कि सेकंड टर्म नहीं मिल जाएगा, हो सकता है कि सेकंड टर्म में पहले से ज्यादा सीटें आ गई। तो इमोशंस पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा काम आती है, बिजनेस में तो आते ही हैं। तो इमोशंस को इग्नोर करना, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, लॉजिकल सेंस, कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इमोशंस बैक्ड बाय लॉजिक, कि आप इमोशंस से लोगों को अपने फेवर में लाओ, और उसके बाद फिर उनको खरीदना है तो कोका कोला आपके पास बनाना ही पड़ेगा, तो कोका कोला है, पेप्सी है, तो इमोशन से लोगों को अपने प्रोडक्ट के फेवर में लाओ और फिर प्रोडक्ट उनको अवेलेबल कर दो। फिर प्राइस अगर अफोर्डेबल होगा तब वो खरीदेंगे, लेकिन इमोशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अच्छा, इसमें आपसे एक बात पूछती हूँ, एग्जाम्पल छोटा सा, ठीक है? अभी देखिए 2 चाय वाले हैं, ठीक है? एक लेबर जाता है उसके पास, एक 5 रुपए में सेम चाय देता है, दूसरा वही सेम चाय 10 रुपए में देता है, तो वो लेबर किसके पास पिएगा चाय? हाँ, तो लेबर जो 5 रुपए वाले के पास, लेबर जो है 5 रुपए वाला, लेकिन अगर बीच में आप बॉर्डर डाल दो, ठीक है? बीच में अगर बॉर्डर डाल दिया, ठीक है, पर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, लेबर वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, तो लेबर किधर पहले नहीं कर सकता, तो उसको 10 रुपए वाला पीना पड़ेगा, पर अलाउ कर दिया कि चलो क्रॉस कर लो, तो वो कहाँ जाएगा? वो 5 रुपए में चाय पिएगा कि 10 रुपए में? चलो मैं मानती हूँ 10 रुपए की 10 दिन पी लेगा, ना पी लेगा, इवेंचुअली तो वो बोलेगा ना कि बॉर्डर खोलो, या फिर मैं तो 5 रुपए वाली पीऊंगा, चाहे वो चाइना से आए, नहीं तो हैव योर सिस्टम्स इन प्लेस। नहीं तो नहीं पीऊंगा। कंज्यूमर जो है वो यही बोलेगा, जैसे आप बोलेगा। सही बात है, यस सर, नहीं, अतुल का बात भी सही है, वो इमोशन से होता ही है, मार्केटिंग। वो जो लेबर है ना, वो जो लेबर है, वो हो सकता है कि 5 रुपए का पी रहा है क्योंकि उसके पास 5 ही रुपए हैं, तो वो पी लेगा, लेकिन उसकी एस्पिरेशन है कि वो 10 रुपए वाला चाय पिए, तो उसको जब मौका मिलेगा तो वो कॉफी डे और ताजो या स्टारबक्स पीना चाहेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, और एस्पिरेशन है, और ज्यादातर लोग एस्पिरेशन पे जीते हैं, तो ज्यादा लोग जीना नहीं चाहते कि सर्वाइव करने चाहते, तो जान जा रही है तो जो भी मुझे मिलेगा खा लेंगे, तो नहीं, चाइना हर सेगमेंट को टारगेट करती है, वो 5, 10, 15, 20, 100 वो हर जगह पे है।
आप फर्स्ट कॉपी ले लो, सेकंड कॉपी ले लो, थर्ड कॉपी ले लो, फोर्थ कॉपी ले लो। चाइना करती है, लेकिन आज मुझे मौका मिलेगा ना, तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जो सबसे सस्ता मारुति 800 कार या साइकिल पे काम चला लूंगा। बट हर लेबर क्लास में चाहता है, अब देखोगे कि जैसे ही उसकी थोड़ी सेविंग हो जाती है तो वो साइकिल से वो स्कूटर या बाइक खरीदना चाहता है, फिर बाइक से वो कार खरीदना चाहता है। पर वो तो ये नहीं देखता कि वो चाइना से बनी है कि इंडिया से, वो सस्ती वाली लेके आएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का काम है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को नॉन कॉम्पिटिटिव बना दिया जाए। आपका 10 रुपए की चाय है और 10 रुपए का टैक्स लग रहा है, वो चाय 20 रुपए का हो गया। सिस्टम्स, जब तक इमोशंस तब चलेंगे when the systems are in place। तो वो लेबर क्लास मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, 5 रुपए वाली, वो put your systems in place। पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, आज भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। आज क्या हुआ, आज एप्पल के मतलब कि जो प्रोडक्ट्स है, जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, अमेरिका क्या कर रहा है चाइना पे? अमेरिका चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ बहुत हाई लगा रहा है। चाइना भी लगाता है, अमेरिका भी लगाता है, वही काम इंडिया भी करेगा और करना स्टार्ट करेगा कि आपके प्रोडक्ट को मैं नॉन कॉम्पिटिटिव बना दूंगा हमारे मार्केट में। क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया जो है 1/10 लिटरली एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। Exactly, that is another way of having a system in place कि आप या तो आप अपना प्रोडक्ट चीप बनाओ या आप दूसरे का प्रोडक्ट उतना महंगा कर दो जितना महंगा बना दो। हाँ, बहुत आसान है, महंगा बना दो। That is again, but then that means you are openly targeting the economic power of China। पावर वो अगेंस्ट हो जाएगा फिर से। चाइना को कोरोना हो गया, ये आप नहीं भूल रही है। चाइना कोरोना के चलते ना, चाइना के अगेंस्ट कुछ भी करते तो पूरी दुनिया आपको साथ देगी कि चाइना का कोविड इन्फेक्टेड प्रोडक्ट मैं कॉफी भी नहीं पीऊंगा, चाय भी कोविड वाला चाय है। अच्छा ठीक है, आप देखिए एप्पल के जो डेवलपमेंट हेड है, उन्होंने साफ बोल दिया कि वी कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम चाइना बिकॉज द प्रिसिजन दैट नीडेड टू मेक द iPhone is not available elsewhere। हाँ, बट एप्पल ने पहली बार, एप्पल ही नहीं, एप्पल, गूगल, सारे बड़े बड़े कंपनी जो सिलिकॉन वैली के हो चाहे दुनिया के, उन लोगों ने इंडिया में कोविड के दौरान आया ये आर्टिकल कि एप्पल नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये इंडिया में डेवलपमेंट सेंटर्स कब खुलना स्टार्ट हुआ। एप्पल का हमेशा केवल इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था, बिकता था, आईपैड, आईफोन बिकता था, लेकिन बनता नहीं था। अभी सैमसंग ने तो बहुत लीड ले रहा है इस मामले में, कोरियन कंपनी सैमसंग का और नोकिया का तो पहले से है मैन्युफैक्चरिंग। अतुल सर, कैन आई कम इन? यस नीरज, बोलिए। Theory of marketing says that price is just an objection। कस्टमर आपको ये पूछ सकता है कि इस प्राइस पे आप ये क्यों दे रहे हैं, इतना महंगा क्यों है, इतना सस्ता क्यों है। जो कस्टमर बायज ऑन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर गिविंग एट दैट प्राइस। एक बहुत ही पॉपुलर एड है इंडियन टेलीविजन पे, जहाँ पे वाइफ ऊपर से कुछ उतार रही है और वो बोलती है आउच, कमर में दर्द हो गया, और हस्बैंड कहता है मुंह लगा दूं। उसमें सिर्फ इमोशनल एंगल है, वैल्यू कम्युनिकेशन कहीं पे नहीं है उस एड में। प्राइस की टॉक भी नहीं होती है। आप रोड पे चलती हुई एसयूवी के देखते हैं, 10 लाख रुपए में भी एसयूवी आती है, 50 लाख में भी आती है, 1 करोड़ रुपए में भी एसयूवी आती है, और हर प्राइस पॉइंट के लिए कस्टमर अवेलेबल है मार्केट में। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मार्केट एंड द कस्टमर। हिताची का एसी जब लोग 15-20 हजार रुपए में विंडो एसी बेचते थे, हिताची 35-40 हजार में बेचता था, और उनके पास एक अच्छी खासी मार्केट थी इंडिया में। प्राइस सिंपली डिफाइंस द टारगेट मार्केट साइज बेस्ड ऑन द क्वालिटी यू आर गिविंग एट दैट पॉइंट। तो क्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइस में। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट नीरज आपने बोला, क्वालिटी। अभी प्रॉब्लम है ना कि चाइनीज प्रोडक्ट जो चाहे आपके चांदनी चौक में हो, चाहे पूरे बैंगलोर हैदराबाद में आ जाएगा, चाइनीज प्रोडक्ट के साथ वो लो क्वालिटी और डिफेक्टिव वाला लेबल आ गया कि चाइनीज हो, अच्छा चाइनीज है माल, सस्ता लेकिन डिफेक्टिव है, चलेगा नहीं। चाइनीज गाड़ी हो, नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि चाइना हर क्वालिटी का माल बनाता है। वो हमारी डिमांड है कि हमें इस प्राइस पर चाहिए। नहीं, अगर हमारी डिमांड है कि हमें इस प्राइस पर चाहिए, ये हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड क्वालिटी का, चल ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन बच्चा खेल लेगा। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, खिलौना तो मैं बोल रहा हूँ कि चाइना का जो ब्रांड पोजीशनिंग है ना दुनिया में, आज जर्मन इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। स्विट्जरलैंड का वॉच बहुत महंगा खरीदते हैं, जबकि चाइनीज वॉच तो आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। बट बहुत लोग स्वॉच खरीदना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड के घड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत महंगी कारें खरीदना चाहते हैं। तो चाइना का जो ब्रांड इमेज है दुनिया में कि सस्ता सुंदर, लेकिन टुकाऊ नहीं, सस्ता सुंदर और खराब हो जाएगा तुरंत। चाइना का ये ब्रांड पोजीशनिंग है, और आई थिंक उस पे इंडिया को काफी इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केटिंग में।
तो हमारा ये ह्यूमन मेंटालिटी भी ऐसी है, वी वांट वैरायटी। मतलब दे आर बैंकिंग ऑन आवर मेंटालिटी कि हमें एक घड़ी नहीं, हमें 10 घड़ी चाहिए, पर ठीक है पैसे कम नहीं चाहिए। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट, कौन बोलना चाहता रहा? हरी जी आप बोलिए पहले। यस तो मैंने इस रिगार्डिंग पहले भी आपसे डिस्कशन में ये पॉइंट उठाया था कि एक्चुअली चाइनीज ने मार्केटिंग में शुरुआत में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। सो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस उनके काफी रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने अलग अलग एरियाज में छोड़ दिए थे, जो उनको कस्टमर लाइक फीडबैक देते हैं कि यहाँ का जो कस्टमर या यहाँ का जो मार्केट है, व्हाट इज दैट डिमांड, हाउ पीपल परचेज, उनका परचेजिंग पावर क्या है, उन लोग क्या पसंद करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट इनपुट्स वो लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए। सो अगर इंडिया में किसी को सस्ता माल पसंद आ रहा है या सस्ता माल का जो कस्टमर है बहुत बड़ा बेस है, तो उन्होंने उस टाइप से फिर मैन्युफैक्चर करना शुरू किया कि लोगों को मेंटेलिटी ऐसी है कि इनको सस्ता मिल गया तो ये लोग खरीद लेते हैं तुरंत। तो उस हिसाब से उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और यहाँ तक कि अभी आप कोई भी अगर बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंडिया में क्यों नहीं बनाते, अभी बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे मेरे एक फ्रेंड। सो बीएमएस में भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हमें खुद से तैयार करना है, तो जो बेसिक कंपोनेंट है वही इंडिया में बनते नहीं है। तो बेसिक कंपोनेंट के लिए तो अपने पास कुछ है ही नहीं, ट्रांजिस्टर सब चाइना से ही आता है। सो वी हैव टू आइदर डू वन थिंग कि जो वहां से वो जो टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोग हम आज तक हमने ये सब लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। हमारे यहाँ कोई भी चिप्स नहीं बनती है, जो मोबाइल की चिप्स होती है या कंप्यूटर की चिप्स होती है, कोई भी ब्रांड ले लो आप, HP ले लो, HCL HP ले लो या तो फिर एप्पल ले लो। सो एवरीथिंग इज मेड इन चाइना ओनली। सो इफ वी अगर हम खुद से ये सब करना शुरू करते हैं, देन चाइना वोंट खुद से तो टाइम लगेगा, बट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, ताइवान भी है, कोरिया भी है और बहुत सारे कंट्रीज हैं। हम बहुत सारे अलायंस बनाकर कर सकते हैं, अकेले बनाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। एग्जैक्टली। एक बार भी मैं स्टेप इन या प्लीज। ये 2015 में एक बार मैं चाइना गया था। उस टाइम मैं आई वाज यूज्ड टू बी इन द पॉलीमर इंडस्ट्री। सो पॉलीमर बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी होता है, जिमर का एक बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी होता है। एंड जर्मन से वो इनविटेशन आया था कि भाई हम लोग शंघाई में ये कर रहे हैं, आप आओ उसमें। तो वहाँ पर हम लोग पहुंचे 3-4 आदमी मिलके। तो दिन भर अपना डिस्कशन हुआ, सेमिनार हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर बाद में एक छोटा सा स्पीच लेके एक चाइनीज स्पीकर आया और वो ट्रांसलेशन से हम लोग सुन रहे थे, वो जो कान में डालते ना। तो देखा ये ऑलमोस्ट जिमर का ही बात कर रहा है। तो फिर किसी ने पूछा कि भाई प्राइस पॉइंट क्या है आपका, एंड दैट वाज आई थिंक 1/3 और आई थिंक ऑलमोस्ट 40% ही नॉक्ड ऑफ। हम लोग अगर $200 मिलियन की बात कर रहे थे, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट $150 मिलियन का। तो जैसे ही फिर इवनिंग में जो पार्टी हुआ तो उसमें जिमर में कोई नहीं था। सब लोग जुट गया चाइनीज के पास। बोला जिमर ने बोला अरे हम लोग बुलाया ये एग्जीबिशन और सारे उनके पास पहुंच गए। तो सो ये चाइना का आई एम सीइंग द सिचुएशंस फ्रॉम 2000, आई एम क्लोजली फॉलोइंग अप। तो जितना बार भी जाते थे चाइना का डेवलपमेंट देख के मेरे को लगता था कि भाई हमारा तो दिन खत्म हो गया, इट्स द एंड ऑफ द डे। फिर भरोसा आया कि चलो उन लोग क्वालिटी नहीं देते हैं, they are good in price but they are not giving quality. But gradually China, I saw they also started improving on the quality drastically. अभी चाइना का जो R&D centers हैं, those are so developed at this moment. और ये जो conception है कि that China is only price and no quality, that is no longer true at this moment. And हो सकता है कि Chinese price will not be cheap anymore also, ये भी हो सकता है। But China is now moving from manufacturing to the more technologies,
side, and they are going for more automations and all those things, because Chinese labor cost has gone up. Chinese labor cost, I think today it will be double or triple of India today, depending on the provinces they manufacture. So China का ये situation तो है, और इंडिया का आज का जो डिस्कशन है भाई, मेरे को तो ये बड़ा ये हर्ट हुआ एक्चुअली, ये जब ये चाइना अटैक किया इंडिया को, बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन व्हाट वी हैड टुडे, कि ये चलो एक जैसे ऐसे ही होगा, हेलो हाई जैसे ही होगा, जैसे विशाल बोल रहा था कि हेलो हाई होगा, इसमें लड़ाई नहीं होगा, बिकॉज वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टुडे एनी काइंड ऑफ वॉर. इसके बाद ये अगर इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया का, एंड इसके बाद अगर इंडिया ने अगर जुड़ गया इसमें, दे गो इन दैट डायरेक्शन, तो नाइटमेयर हो जाएगा. मींस इट विल बी रियली अ वेरी पैथेटिक कंडीशन फॉर द कंट्री. ठीक है, सुनने के लिए अच्छा लगता है कि भाई चलो हम लोग बहुत तगड़ा हो गए, वी विल रूइन चाइना, बट अपने को क्या मिलेगा उसमें? तो आई डोंट थिंक वॉर वगैरह कुछ होगा ऐसा. और तो श्यामा जिस पे तो अनोनिमस था, किसी ने बोला ही नहीं कि वॉर होगा या होना चाहिए. थी एवरीबडी एग्रीड कि वॉर होने की जरूरत ही नहीं, होगा भी नहीं. हाँ, so that is the confidence. इकोनॉमिक वॉर की बात चल रही थी. Yeah, so अभी चाइना का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये लोग पूरा अलग खोपड़ी का आदमी है सब. अभी इनका देयर व्हाट इज बॉदरिंग देम, इट इज देयर own manufacturing, their own economy today, and अभी उनके पास मार्केट नहीं है, इधर उधर नहीं है. so this is more of a negotiation tactics, कि चलो इसको ठोक के देखते हैं, उसको ठोक के देखते हैं, और फिर हम लोग नेगोशिएट कर लेंगे द ट्रेड का. so that's the thing probably China is aiming at this moment, and they have started with India because India is the very big market. अगर इंडिया को ठीक ठाक कर लिया तो बाकी रीजन को भी ठीक कर ही लेंगे. So that is the, I think, going on at this moment. एक और पॉइंट मैंने लिखा था कि how are we defining Chinese companies? Company fully owned by Chinese people, partially owned by Chinese people, I mean more than 50% owned by Chinese people. Boycott करना किसको है exactly? ये भी I think बहुत अच्छे से clear नहीं है. Ravi wants to add. Yeah, Ravi, please add, and then Mr. Hari can also add. Yes. So Vishal, किसको boycott करना चाहिए exactly? See, this is in two way I will answer. There are few things which I'll 2 points I would like to add before this point. Okay, one, Chinese products are not cheap. They are value for money products. They have every range of products in every segment, but India as very price sensitive. If products come to India in that way, but I am dealing with Chinese products in all variants of my sector, and they have every product with every price range in every segment A, B, C, D, all segments. So they are very value for money products. Second point, हम जब price sensitivity की बात करते हैं, so there are अभी नीरज is there in Delhi. So दिल्ली का market चाइना, बहुत सारे supplies दिल्ली में directly चाइना से आते हैं. जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े हुए ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, दे डोंट गिव देयर टाइम टू एंटरटेन एनी मैन्युफैक्चरर हु आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. उतना एक मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे के टाइम स्पैन लेके, और जो पैसा उनको लगता है उसके आधे दाम या फिर 70% दाम में वो चाइना को ऑर्डर देंगे, और वहां से माल शिप होके आ जाता है, फिर भी कॉस्टिंग नीचे जाता है. सो दोज आर द बिग प्लेयर्स. वो सिर्फ पैसा देखते हैं, दे डोंट प्ले ऑन ऑल दिस थिंग्स. उन्हें जहां पे दिखता है कि हाँ यार मेरा 30% मार्जिन अच्छा है, तो वो कहां से आ रहा है, दैट इज इमेटेरियल. वो इमेटेरियल हो जाता है उस इमोशंस पे. वी एज ए इंडिविजुअल कस्टमर्स, अभी पीपीई के केस में मैं बताता हूँ. पीपीई के केस में ये थर्मोमीटर जो है 70% 90% thermometer has been shown only by manufactured by China. I am connected with a company in Pune who are manufacturing this thermometer in India. In Pune, they are manufacturing. Their cost is 2,200 rupees plus taxes. We are unable to sell even at present around 3,000 or 4,000 thermometer
is in tier 2 cities. Ravi, that was the good part of Chinese कि उनकी presence काफी ज्यादा है, but आपने शायद वो वाला कहानी नहीं सुना कि बहुत सारे countries ने चाइना का जो defective था जो कोरोना वायरस में उसका उन्होंने बैन कर दिया कि मैं चाइना से नहीं मंगाऊंगा. That is what I am telling you. We need to think as a India how we can improve. We cannot cut down China by emotionally. We need to think of as a India. That's an obvious thing. Everybody wants to improve India. उसमें कोई doubt ही नहीं है. But who says कि we should not improve India? That is what my point. इसलिए मैंने US के context. Can I step in? But at the same time, India has a huge chance at this moment to reorganize the manufacturing sector. This is a huge scope, huge scope, what I can see. If India is not encassing this particular moment to reorganize the manufacturing, when they will? Because ultimately India has to realize that, look, last 2 decades, China has dominated the world market in the manufacturing. Today, whether you talk about US or anywhere, the manufacturing sector is vanished from those countries. And in India, we were not being able to compete, and that is happening largely because we lacked on the scale. China's major advantage of providing goods at a competitive price was the scale of operations, and the cumulative utilities. अगर कोई शहर है तो उसी में एक ही जगह से they will be using the steam, or they will be humidification they will be using from there, or electricity they will bifurcate. So this way and also the supply chain they managed in such a way that was giving a huge advantage to their cost. And of course, government subsidy was there in the beginning, but gradually they carved on the government subsidies, and also bank loans, etc. They tightened, So today the Chinese industries are operating on their own strength. So that strength India lacked, and India must recognize this weakness in the system. It is no longer an infrastructure issue to me, because it used to be an infrastructure issue some time back, but India has done pretty well on the infrastructure development right now. So abhi agar scale leke aaya jaye and people can think about making a competitive product. और इंडिया का और एक क्या हो गया था इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, that suppose they will produce 100, out of that 100 they will target 90% for the domestic market. अगर नहीं बिका तो we will sell it to the export market. So that mentality in India needs to change, because that's where China took the stand. They were producing looking at the entire world. फिर जब वर्ल्ड में नहीं बिका, बोला चलो ये हम खुद के लिए रख लेते हैं, तो उसमें थोड़ा क्वालिटी अवेयरनेस आ गया चाइना में. सो सिमिलरली इंडिया में भी अगर क्वालिटी अवेयरनेस लेके आना है और ये सप्लाई चेन को थोड़ा ठीक ठाक करना है, सो इंडिया हैज टू थिंक सम डिफरेंट वे हाउ टू कम्पीट एंड हाउ टू प्रोवाइड ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. बिकॉज आज कोई इंटरनेशनल बायर अगर आएगा, सपोज दे वांट टू बाय टी शर्ट, अगर अब आप उनको बोलोगे मेरे पास 100 टी शर्ट है, आप तो 2000 मांग रहे हो, बाकी आपको मैंने कपड़ा दे रहा हूँ, आप कपड़ा दे के दूसरा जगह चले जाओ, वहां पर गारमेंटिंग करवा लेना आप. सो वो तो कस्टमर भाग जाएगा वहां से. दैट बायर विल गो अवे फ्रॉम इंडिया. दे वांट वन स्टॉप सॉल्यूशन. सो अगर इंडिया के पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन सिनारियो में. लेट इंडिया एनकैश इट. दैट इज माय hope and that is my dream, honestly. India replace China. Yes. सर आपने एक चीज अच्छी बोली, मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि गवर्नमेंट एक्चुअली हेल्प चाइनीज प्रोडक्ट टू मेक इट वेरी सब्सिडाइज. उस तरह के ना जियो सिम वाला चीज हो गया कि ऑलमोस्ट फ्री का पकड़ा दो सबको आदत लग जाएगा उस प्रोडक्ट का, वो रिलेशन भी बन जाएगा, सारे कंपटीशन खत्म हो जाएंगे इंडिया के, और धीरे धीरे आपका मोनोपोली हो जाएगा. तो चाइना ने कहीं ना कहीं वही किया, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने हटाता चला गया. I mean, they started to remove also, and they could manage by their own. But initially, government helped them a lot probably. जो
प्राइसिंग भी होता है, आई थिंक उनका जो भी वर्ड होता है, गवर्नमेंट हेल्प्स देम अ लॉट। तो आई थिंक ये इंडिया में भी होना पड़ेगा कि जो इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो एटलीस्ट इक्विवेलेंट क्वालिटी है चाइना के, उसको प्राइसिंग सेम लाने के लिए R&D करने की जरूरत है और कुछ सब्सिडी देने की भी शायद जरूरत है। यस नीरज प्लीज। I just want to add to Shama sir. नीरज, then Hari can add. Yeah. Let's go 5 minutes more. I just want to add to Shama sir's point of quality. अभी भी अगर हम वर्ल्ड की टोटल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना कहीं अराउंड 24-25% बनाता है, और यूएस में हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लेबर है, सब कुछ है, और उसके बाद भी इट स्टैंड्स अराउंड 18 to 20%। तो एप्पल्स, स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी क्वालिटी और क्वालिटी के साथ न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले जो लोग वहां पे आए हैं, उन्होंने चीजों को बदला है और क्वालिटी की तरफ हमेशा दुनिया देखती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंडिया क्वालिटी पे काम करेगा तो चाइना को जल्दी से बीट कर पाएगा, प्राइस की तरफ ज्यादा ध्यान ना देके। That's it. Yes, Mr. Hari, बताइए। यस मुझे रवि जी ने अभी जो कहा कि मोस्ट ऑफ द डीलर्स या ट्रेडर्स जो है दे वोंट इवन एंटरटेन द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग एंड प्रॉफिट्स। तो ये बात काफी हद तक तो सही है कि द मार्केट इज सो फास्ट दीज डेज, और चाइनीज प्रोडक्ट इतना फास्ट आ रहा था इंडिया में कि द इंडियन मैन्युफैक्चरर उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। बट थिंग इज कि प्रॉफिटिंग जो है वो जो कस्टमर होता है वो ट्रेडर तो अपना जेब भर लेता है तुरंत, ही विल गेट द मनी, बट उसका जो कस्टमर है वो अल्टीमेटली लॉस में जाता है, बिकॉज चाइनीज प्रोडक्ट जैसा कहा जाए कि आज लिया और चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर गया। सो दैट इज द थिंग। ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखा है और सुना भी है, कस्टमर्स से भी, ट्रेडर्स से भी, डीलर्स से भी। सो ओनली ये जो फास्ट करने के चक्कर में पैसा जो फास्ट बन रहा है उनका, उसके चक्कर में ये सब हो रहा है। सो ये चीज हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं अगर एक्चुअली जैसे श्यामा सर बोल रहे थे कि इकोनॉमिक वॉर या एनी टाइप ऑफ वॉर वी आर नॉट इन अ पोजिशन, बट वी आर ऑलरेडी इन सच अ सीनियर नाउ कि हमें वॉर करना ही पड़ेगा, बिकॉज वॉट एवर प्रोडक्ट्स दैट वेर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू यूएस, दे आर गेटिंग हैवी इंपोर्ट ड्यूटी और बहुत से टैक्सेस, सो बहुत से सैंक्शंस लगा रही है यूएस गवर्नमेंट, ट्रम्प गवर्नमेंट। सो उससे क्या हो रहा है कि देयर मार्जिन हैज ह्यूजली रिड्यूस्ड। उनका जो प्रॉफिट हुआ करता था चाइनीज कंपनीज का वो काफी कम हो गया है अभी। तो उसके चलते द प्रोडक्ट दैट वी वर गेटिंग चीपर अर्लियर वी वोंट बी गेटिंग द सेम रेट। उसका कोई गारंटी नहीं है अभी कि हमें उसी रेट में वो प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज एक्चुअली व्हेन ट्रेड वॉर हैपेंस तो ये भी दिस इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट थिंग। तो ये हम नहीं रोक सकते जब तक कि बिकॉज इट इज डन बाय यूएस, हु इज अ सुपर पावर, सो दे वो लोग कर रहे हैं ऐसा, सो दे बिकॉज दे डोंट वांट सच टाइप ऑफ डंपिंग। सो वही है कि दिस शुड बी like an opportunity, taken as an opportunity, और हमको just encash करना चाहिए। और आज जरूरत भी है हमें, this is the most thing we need right now। so उसके basis पे मुझे लगता है कि we should start our own infrastructure into manufacturing now। so manufacturing start हो जाए वही सबसे बेस्ट है। we have immense youth, we have immense potential, और बहुत कुछ हमारे पास है, बस स्टार्ट हो जाए, बस वही है अब। अच्छा विशाल जी, अभी हम इस पर अगर आज खत्म करनी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या हम एक ऐसा टॉपिक ले सकते हैं जिससे हम ये हाईलाइट करें कि क्या क्या चाहिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए, इंडिया को आत्मनिर्भर कैसे करें? हाँ, और मतलब हमें गवर्नमेंट से मिनिमम क्या चाहिए? मतलब ठीक है, ब्राइबरी वगैरह तो होगी वो हर जगह है, बट मिनिमम क्या चाहिए हमें कि मतलब चलो अगर एक अप्रूवल्स कम हो या फिर अप्रूवल्स ऑर्गेनाइज्ड हुए इस तरह से कि अगर एक अप्रूवल ले ले तो साथ में 4 और बाय डिफॉल्ट अप्रूव हो जाए, तो कुछ बेसिक ऐसा क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने जो सुना था या पढ़ा था, आई रिमेम्बर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए वी नीड अराउंड 1200 अप्रूवल्स। मतलब एट अ डिसेंट स्केल अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करते हो
क्या मैंने समझा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए क्या? स्टार्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो बहुत ज्यादा है, अराउंड 1200 या कुछ मैंने ऐसा पढ़ा था। तो हम ऐसा मतलब कुछ इस तरह से कि जिससे कि हमें मिनिमम क्या चाहिए कि हम, बिकॉज राइट नाउ द प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। अगर किसी ने भी कुछ स्टार्ट करना है तो वो कौन झंझट में पड़ेगा, सरकार के कौन चक्कर काटेगा। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने 4 साल पहले से ही प्लानिंग, 4 या 5 साल से उसने वो व्हाइट उड़द दाल होती है ना, उसकी मिलिंग मतलब उसकी क्लीनिंग और मतलब फार्मर से लेके क्लीन कर कर पॉलिश कर कर बेचते हैं। तो टू सेट अप दैट फैक्ट्री, इट्स अ बिग फैक्ट्री विद अ लॉट ऑफ मशीनरी एंड ऑल, मोस्टली फ्रॉम चाइना ऑफ कोर्स। उसको 5 साल लगे हैं अप्रूवल्स और सब अरेंज करने में, लोन्स अप्रूव कराने में, अरेंज करने में, अप्रूवल ये वो 4 to 5 years ही तक। तो मतलब ये तो मिनिमम है ना, 4-5 साल तो ऐसे ही हो गए कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में आना है, चाइना को बीट करना है, 5 साल तो फ्लैट यही हो। इंडिया कर ही सकता है, इंडिया इज इन अ पोजीशन। हाँ, पर हमें कुछ इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, तो इसको हम स्पीड अगर अप करना एज अ होगा ग्रुप, सर। जैसे हमारे ग्रुप में 100, 150, 200 लोग हैं जीडी में, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, कुछ जो हम प्रपोज करें कि मिनिमम अगर हमें ये मिल जाए तो वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस, एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। मतलब हम आपस में डिस्कस करके एक दूसरे की नॉलेज बढ़ा देते हैं। कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द मिनिमम आई मीन रिक्वायरमेंट या जो भी काइंड ऑफ टू रिप्लेस चाइना, हाउ इंडिया कैन रिप्लेस चाइना कैन बी द टॉपिक। ठीक है, रिप्लेस चाइना तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी हम अपने आप को कम्पिटिटिव कैसे बनाए। आई ऑलवेज लुक एट माय सेल्फ कि हमें अपने आप को कम्पिटिटिव बनाना है। उन्होंने अपने आप को बना लिया है कम्पिटिटिव, नाउ इट्स आवर चांस। हाउ इंडिया कैन बिकम नेक्स्ट सुपर पावर, ठीक है, इसको रखते हैं, ऐसा बनाते हैं कुछ। ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।